Thank you, Adarsh ji. Good morning, everybody. A very warm welcome to Mrs. Dika Sharma, Principal, Grand Colors International School, Faridabad, TIT Convener Vikas ji, Co-Convener Jitesh ji, TIP Faridabad President Rajesh ji, Secretary Vivek ji, the respected teachers, management of the school, dear students. Today, our trained cadets, trainers shall be sharing life-saving tips with you on various medical emergencies and natural disasters and to empower you to be a medical first responder. Emergencies can happen with anyone, everyone, with anyone, anywhere. And when these emergencies happen, we don't know how to get to that. And in cases, there are times that a huge damage is caused, or either we lose our near and dear ones. Dear students, we all aspire to be a hero when we are kids, and when we grow up we realize that all happens in real life. In real life it doesn't happen in real life, but life gives us opportunity to be a hero in real life. When we rise others, when we learn this kind of tips, will enhance skills and we empower ourselves to help others to provide selfless service to humanities. For example, these emergencies happen with us when we are playing in the field, when our teacher is teaching us in the classroom, when our mother is cooking in the kitchen, and when such kind of instances happen, when we are trained, we know the tips, we can save lives. I like to introduce our organization, Akhil Bharatiya Panth Yuva Parishad, with the best blessings of Acharya Mahasanji. Our organization is doing many humanitarian work. We are running 55 charitable diagnostic centers across the country. Our organization has created Guinness Book of World Record in 2013 by donating more than 1 lakh units of blood in a single day. And now, with this Terapan task force, our cadets are being trained by National Disaster Force, and in turn, with such worst, we are trying to pass it on to you. I am very thankful to the management of Grand Columbus International School for giving our organization this opportunity to share our learnings with all of you on this platform. And our Parishad Teranth Yuvak Parishad Faridas is also very actively involved in these causes. We are also thankful to our TYP member Anji Sham Sukha coordinating and organizing this program. A very warm welcome all of you, and I would like to continue our TTF team to carry on today's session. Thank you. थैंक यू नेशनल चीफ सेक्रेटरी ऑफ एबीटीआईपी मनीष जी। तो अब मैं आमंत्रित करूंगा तेरापंथ युवक परिषद के अध्यक्ष श्री राजेश जी जैन को। Sir, please unmute yourself. ओके, थैंक यू। गुड मॉर्निंग, आप सभी को जय जिनेन्द्र। अखिल भारतीय तेरापंथ युवक परिषद के नेतृत्व में तेरापंथ युवक परिषद फरीदाबाद द्वारा आयोजित आज के युग की मांग जूम ऐप के माध्यम से जीसीआई स्कूल फरीदाबाद के सहयोग से आयोजित है। श्रीमान श्री मनीष जी दफ्तरी और तेरापंथ टास्क फोर्स के राष्ट्रीय प्रभारी श्री जितेश जी पोखरना व तेईस फरीदाबाद के प्रभारी श्री जतन श्याम सुखा का स्वागत है। सभा अध्यक्ष श्रीमान रोशन लाल जी बोर्ड व महिला मंडल अध्यक्ष श्रीमती सुनीता जी नाहटा, टीपीएफ के अध्यक्ष श्रीमान विजय जी नाहटा, तेरापंथ जैन समाज के सभी सदस्यों का स्वागत है। इसी कड़ी में मैं धन्यवाद व स्वागत करना चाहूंगा जीसीआई स्कूल की प्रिंसिपल मैम मिसिज दीपिका शर्मा व मिसिज समीता रजा व श्री आरसी गोल जी का बहुत बहुत स्वागत व धन्यवाद, जिन्होंने हमारी संस्था को मिशन एम्पावरमेंट और ट्रेनिंग सेशन के लिए अनुमति दी। टीटीएफ के कैडेट्स आज भारतवर्ष के अंदर आने वाली आपदा विपदा के समय में अहम भूमिका पिछले काफी वर्षों से निभाते आए हैं। टीटीएफ ने सितंबर और अक्टूबर में लगभग 37 कार्यशाला आयोजित की है, जिसमें 10,000 से ज्यादा बच्चों ने प्रशिक्षण प्राप्त किया है। टीटीएफ एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो जनमानस के लिए प्राथमिक चिकित्सा जागरूकता का निर्माण करने का लक्ष्य होता है। जीसीआई स्कूल के सभी बच्चों का स्वागत है। आज की कार्यशाला से जुड़े हुए सभी बच्चों
इस प्रशिक्षण को सीखें और समय आने पर वह अपने आसपास के लोगों का सहयोग करें। धन्यवाद। धन्यवाद राजेश जी। तो दोस्तों, अब मैं बिना किसी भूमिका आमंत्रित करूंगा तेरापन टास्क फोर्स के अनुभवी कैडेट्स जो कि एनडीआरएफ से ट्रेंड है, ऐसे हमारे सैनिक जी कुचेरिया और नवीन जी भंडारी को, कि वो आज का मिशन एम्पावरमेंट का सेशन के द्वारा आपको ट्रेनिंग करें। जय जिनेंद्र, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। मैं ऑडिबल हूँ प्रॉपर्ली? यस। सो गुड मॉर्निंग किड्स, गुड मॉर्निंग बच्चों, सभी को सादर जय जिनेंद्र। मैं सबसे पहले चाहूंगा कि सारे बच्चे अपने वीडियोस ऑन कर ले। वीडियोस आप ऑन कर लीजिए अपने, ताकि एक सेशन इंटरैक्टिव प्रॉपर सेशन रह सके, इसको एक इंटरैक्टिव सेशन हम रख सके। वीडियोस जैसे मैं देख सकता हूँ काफी बच्चों ने ऑन कर लिए है। मैं चाहूंगा सभी अपने वीडियोस ऑन कर लीजिए। आगे हम 6 छोटे छोटे सेशंस रखने वाले हैं, 6 आपदाओं 6 विपदाओं के सेशंस रखने वाले हैं, जैसे बर्निंग है, स्नेक बाइट है, ऐसे जो छोटे छोटे सेशंस है। उस हर सेशन के एंड में हम छोटा रिव्यूज हम बच्चों से लेंगे वापस कि आपने इस सेशन में क्या सीखा। इसीलिए आप वीडियोस अपने ऑन कर लीजिए, और जैसे ही सेशन खत्म होगा आप किसी एक को अनम्यूट ऑटोमेटिकली कंप्यूटर जी कर लेंगे। जैसे अब पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन एक स्लाइड शो आपको दिखेगा, उसके हिसाब से हम आपको एक्सप्लेन करते जाएंगे एक एक सेशन। सबसे पहला सेशन मैं आपको बताना चाहूंगा बर्निंग पे है। व्हाट इज बर्निंग? डायरेक्ट एक्सपोजर टू एनी मेडिकल थर्मल, रेडिएशन, इलेक्ट्रिकल, ऐसे किसी भी तरह से डायरेक्ट एक्सपोजर आपका अगर हो रहा है स्किन का, तो उसको बर्निंग हम कहते हैं। आपकी स्किन अगर केमिकली किसी केमिकल से डायरेक्ट लैब में एक्सपोज हो जाए, या फिजिकली कोई हीट पे, नॉर्मल गैस पे या फिर कहीं पे डायरेक्ट एक्सपोज हो जाए, रेडिएशन जो होते हैं रेडिएशन के हिसाब से अगर डायरेक्ट एक्सपोज हो जाए, या फिर किसी ओपन वायर पे, सर्किट पे आपकी स्किन एक्सपोज हो जाए, तो उसे हम बर्निंग कहते हैं। बर्निंग के बारे में सबसे पहले हम कुछ फैक्ट्स जानेंगे। फैक्ट्स जो बेसिकली 70 लाख केसेस पूरे इंडिया, पूरे वर्ल्ड में ग्लोबली 70 लाख केसेस हर साल रजिस्टर होते हैं एनुअली बर्निंग के लिए। उसमें से मैं आपको बताना चाहूंगा 10 लाख केसेस पर ईयर जो होते हैं वो मॉडरेटली या सिवियरली बर्न, मतलब ज्यादा मॉडरेट या एकदम प्रॉपर सिवियर बर्न के होते हैं 10 लाख के ऊपर। आप स्क्रीन पे देख सकते हो 1.4 लाख, थर्ड पॉइंट जो है 1.4 लाख पीपल डाई ऑफ बर्न एवरी ईयर, मतलब डेथ रेशियो काफी हाई है बर्न का। एक 1.4 लाख पीपल एवरी ईयर डाई ऑफ बर्न। Around 70% of 1.4 lakh is mostly from the productive age group 15 to 35 years of age। मैं ये बताना चाहूंगा किचन एक्सीडेंट्स जो है वो काफी एकदम रेगुलर होते हैं बर्न्स में। किचन में या घर में कहीं ज्यादा बर्न हो जाए, इलेक्ट्रिकल वायर या किचन के गैस वगैरह से बर्न हो जाए, उसको हम बहुत प्रोडक्टिव एज ग्रुप इसलिए कहते हैं क्योंकि यूजुअली ये एज ग्रुप घर में से काम करता है, एंड मेजोरिटी वुमेन एंड चिल्ड्रन ही बर्न होते हैं। तो ये बारी थी, ये हो गए कुछ फैक्ट्स के बारे में। अब हम बेसिकली बर्न के बारे में बात करना शुरू करेंगे। बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ स्किन। बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ स्किन में आप स्किन के 3 लेयर आप देखेंगे। स्किन के 3 लेयर जो होते हैं एपिडर्मिस, डर्मिस और हाइपोडर्मिस, जो 3 लेयर्स होते हैं। सबसे पहला लेयर जिसको आप फिजिकली टच कर सकते हो स्किन को, वो होता है आपका एपिडर्मिस। एपिडर्मिस जो लेयर होता है वो सबसे फर्स्ट लेयर, जो सबसे टॉप लेयर होता है स्किन का, उसे हम एपिडर्मिस कह सकते हैं। आप स्क्रीन पे देख सकते हो एपिडर्मिस के बाद जो आपका सेकेंड लेयर होता है स्किन का, जो सेकेंड लेयर एपिडर्मिस के बाद स्किन में आता है, जिसको हम फिजिकली टच नहीं कर सकते हैं, वो होता है डर्मिस। डर्मिस के बाद में जो फैट लेयर स्किन का होता है, फैट लेयर जिसे हम कहते हैं सब्सटैंशियस टिश्यू, उसको हम हाइपोडर्मिस कहते हैं। जो थर्ड लेयर स्किन का होता है, जो काफी अंदर होता है स्किन में, जो थर्ड लेयर स्किन का होता है। तो ये 3 लेयर्स आपको याद रखने हैं, एपिडर्मिस, डर्मिस और हाइपोडर्मिस, जिसे हम फैट कहते हैं। हाइपोडर्मिस के नीचे मसल आता है स्किन के, जो टिश्यूज मसल्स जो होते हैं वो हाइपोडर्मिस के नीचे आता है। अब आप बोलेंगे कि ये स्किन की अंडरस्टैंडिंग हम क्यों कर रहे हैं, तो इन जो लेयर्स है, इन लेयर्स के हिसाब से हम देखेंगे कि क्लासिफिकेशन ऑफ डिग्री ऑफ बर्न, अपनी स्किन किस लेवल पे, किस डिग्री पे बर्न हुई है, ये चीज हम स्किन के लेयर्स के वजह से समझेंगे। सबसे पहले आप देख सकते हो फर्स्ट फिगर में एपिडर्मिस जो पहला लेयर है उसको इफेक्ट हुआ है। एपिडर्मिस को इफेक्ट होने के कारण आप देख सकते हो कि उसे हम फर्स्ट डिग्री बर्न कहते हैं। एपिडर्मिस फर्स्ट लेयर ऑफ स्किन आपने देखा है, उसको इफेक्ट होने के कारण
स्किन का फर्स्ट डिग्री जो बर्न हो रहा है। सेकेंड इमेज में आप देखिए आपका स्किन का सेकेंड लेयर जो कि आपका डर्मिस लेयर है वो इफेक्ट हो रहा है, तो हम कहते हैं इसे सेकेंड डिग्री बर्न। और थर्ड इमेज में आप देखिए काफी बुरी तरह से स्किन बर्न हुआ है, थर्ड डिग्री तक, यानी कि थर्ड लेयर ऑफ स्किन तक हर्ट हुआ है, थर्ड लेयर ऑफ स्किन तक बर्न हुआ है, उसे हम थर्ड डिग्री बर्न कहेंगे। ये देखने के हिसाब से भी आप देख सकते हो, अगर नॉर्मल स्किन बर्न हुआ है, नेक्स्ट स्लाइड में आप देख सकते हो कि नॉर्मल स्किन अगर बर्न हुआ है तो वो उसे हम फर्स्ट डिग्री हम बर्न कह सकते हैं, जो ऊपर ऊपर स्किन पे बर्न हुआ है। सेकेंड डिग्री में आपको ब्लिस्टर्स थोड़े बहुत दिखेंगे, ब्लिस्टर्स के हिसाब से आप देखेंगे। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। नेक्स्ट स्लाइड में आप देख सकते हो सेकेंड डिग्री में आप ब्लिस्टर्स देख सकते हो छोटे छोटे, वो ब्लिस्टर्स के हिसाब से बर्न सेकेंड डिग्री बर्न हम कहते हैं। और काफी सिवियर बर्न जो आपको स्किन का थर्ड लेयर प्रॉपरली दिख रहा है, उसमें देख सकते हैं आप थर्ड इमेज, थर्ड इसमें फुल थिकनेस बोलते हैं हम जिसे, फुल थिकनेस थर्ड डिग्री बर्न जिसे हम कहते हैं, वो हो गया हमारा थर्ड डिग्री बर्न। अब ये तो बात हो गई स्किन टाइप्स की और डिग्री ऑफ बर्न्स की। अब हम बात करेंगे रूल ऑफ 9 की, कि स्किन कितना मेजरली बर्न हुआ है, कितना सिवियर बर्न है, कितना माइनरली बर्न है। ये चीज देखने के लिए हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा कि स्किन का कितना परसेंटेज बर्न हुआ है, कितना परसेंटेज स्किन का बर्न हुआ है, उसके लिए हम कैलकुलेट करेंगे रूल ऑफ 9। मैं आपको बताना चाहूंगा कि रूल ऑफ 9 एडल्ट और चाइल्ड में अलग अलग होता है, एक छोटा सा बेसिक डिफरेंस है। तो सबसे पहले हम एडल्ट की बात करेंगे। अगर एडल्ट का फ्रंट, हेड एंड बैक ये साइड अगर बर्न हो रहा है तो उसे हम 9% कैलकुलेट करेंगे। आप नोट करते जाइए ये चीज, रूल ऑफ 9 नोट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको ये परसेंटेज लर्न होने चाहिए, बट आप जैसे नोट करेंगे उसके बाद में आप रिवाइज करते हो इस चीज को लर्न करेंगे। फ्रंट एंड बैक को 9%, आपका बैक एंड चेस्ट 18% ईच, चेस्ट इज 18% एंड बैक इज 18%। लेफ्ट आर्म एंड राइट आर्म आपका 9% ईच, आपका पेरिनियम जो पाम का एरिया है वो 1%, एंड लेफ्ट एंड राइट लेग फिर से 18% ईच के हिसाब से आप कैलकुलेट करेंगे। आप इसको टोटल करेंगे, आप 100% के आसपास 100% पे ही पहुंचेंगे। वापस एक बार रिपीट करता हूँ, हेड एंड बैक 9%, चेस्ट एंड बैक 18%, लेफ्ट आर्म एंड राइट आर्म 9% each, perineum will be 1% and 18% will be right leg, 18% will be left leg। अब चाइल्ड में ये थोड़ा सा अलग होता है। चाइल्ड में अलग होने का कारण ये है कि जो आपने एडल्ट में देखा कि हेड एंड बैक जो है, फ्रंट एंड बैक हेड का वो 9% ईच है, चाइल्ड में वो 18% ईच होता है। आपका हेड का फ्रंट एंड बैक 18% ईच, चेस्ट एंड बैक सिमिलरली 18% ईच, लेफ्ट आर्म राइट आर्म आपका सिमिलरली 9% ईच, पेरिनियम भी 1% ईच। बस हेड में और लेग में डिफरेंस है, लेग इज 13.5% ईच, राइट लेग विल बी 13.5%, लेफ्ट लेग विल बी 13.5%। तो इस तरह से आपको रूल ऑफ 9 से कितना परसेंटेज बॉडी में बर्न हुआ है ये कैलकुलेट करना है। अब आपका क्वेश्चन आ रहा होगा कि ये कैलकुलेट करके हमें क्या होने वाला है। नेक्स्ट स्लाइड में आप देखोगे कि ये कैलकुलेट करने के बाद में जो परसेंटेज आएंगे, परसेंटेज पर आप डिसाइड कर सकोगे कि सेकेंड डिग्री, फर्स्ट डिग्री, थर्ड डिग्री बर्न में आपका मेजर बर्न है, मॉडरेट बर्न है या क्रिटिकल बर्न है। तो टेबल में आप एकदम प्रॉपरली एकदम बाइफर्गेट करके बताया हुआ है। फर्स्ट डिग्री बर्न में अगर लेस देन 15%, 50% बर्न आप कैलकुलेट कर रहे हो, सॉरी 50% बर्न आप कैलकुलेट कर रहे हो, तो वो एक माइनर बर्न है, उसको ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। प्रॉपरली उसको घर पे ही फर्स्ट एड से आप क्योर कर सकते हो। फर्स्ट डिग्री बर्न के लिए लेस देन 50%। मॉडरेट बर्न अगर वो ग्रेटर देन 50% हो चुका है, ग्रेटर देन 50% के लिए फर्स्ट डिग्री बर्न भी मॉडरेट बर्न में कैलकुलेट होता है। फर्स्ट डिग्री में यूजुअली क्रिटिकल बर्न्स हम नहीं कैलकुलेट करते हैं। इसी तरह से सेकेंड डिग्री बर्न की अगर आप बात कर रहे हो, आपने परसेंटेज 2 to 15% कैलकुलेट किया है, तो वो एक माइनर डिग्री बर्न है। ये टेबल मेरे हिसाब से आप सभी ने नोट कर लेना चाहिए कहीं पे, आपके फेयर बुक में, रफ बुक में मत कीजिएगा। 2 to 15% बर्न अगर है तो ये माइनर बर्न है, 15 to 30% है तो ये मॉडरेट बर्न है, और अगर ग्रेटर देन 30%, ग्रेटर देन मोर देन 30% अगर आप रूल ऑफ 9 के हिसाब से कैलकुलेट करते हो तो ये क्रिटिकल बर्न है। सेकेंड डिग्री बर्न की हम बात कर रहे हैं। अब हम बात करेंगे थर्ड डिग्री बर्न की। थर्ड डिग्री बर्न में अगर लेस देन 2% आप देख रहे हो, बस मतलब आप समझ सकते हो कि सिर्फ पेरिनियम जो एरिया है, अपना पाम का एरिया अगर बर्न हुआ है, बस वो एक ही पॉसिबिलिटी पड़ती है कि एक थर्ड डिग्री बर्न माइनर बर्न हो सकता है। बट उससे ज्यादा 2 to 10% अगर आप देखिए तो मॉडरेट बर्न में कैलकुलेट होगा,
और ग्रेटर देन 10%, मतलब बेसिकली 3rd डिग्री बर्न में हर पॉसिबिलिटी यही कहती है कि बर्न इज अ क्रिटिकल बर्न। 10 डिग्री आप देख सकते हो रूल ऑफ 9 के हिसाब से बहुत कम पॉसिबिलिटी है कि 10 डिग्री ही बर्न हो, तो सारे बर्न जो होंगे वो लगभग क्रिटिकल बर्न में ही कैलकुलेट होंगे। तो ये आपने रूल ऑफ 9 के हिसाब से बर्न की सिवियरिटी देखी कि किस तरह से बर्न के परसेंटेज कैलकुलेट करके हम देख रहे हैं कि बर्न माइनर है, मेजर है। इसके बाद हम बात करेंगे कि बर्न लाइव फायर लगने के बाद में किसी इंसान के ऊपर हमें क्या करना चाहिए। ट्रायंगल ऑफ फायर जिसे हम कहते हैं, ये एक रूल होता है। यूजुअली आपके बॉडी पे या किसी और के बॉडी पे फायर लगा है तो पैनिक होके इधर उधर भागना बहुत आम है, बहुत नॉर्मल है। ये होता ही है कि आपकी बॉडी पे फायर है तो आप इधर उधर भागने लगेंगे, बट मैं आपको बताना चाहूंगा कि ऐसा हमें नहीं करना है। सबसे पहले अगर आप भी हो विक्टिम या कोई और भी विक्टिम है तो उसे हमें एक जगह पे रुकाना है, उन्हें स्टॉप करना है। ध्यान रखिएगा दूर से ही ये करना है, आपको उनके पास में ज्यादा जाना नहीं है ताकि आपको भी फायर ना लग जाए। उनको आपको जगह पे स्टॉप करवाना है और उन्हें नीचे ड्रॉप करवाना है। उन्हें कहना है आप ड्रॉप हो जाइए, जमीन पे लेट जाइए और उसके बाद में रोल कीजिए। रोल करने से क्या होगा कि जो बॉडी पे फायर है वो बर्न आउट हो जाएगा, फायर ऑफ हो जाएगा। तो इससे आपका मॉडरेट सिवियर क्रिटिकल बर्न होने की जो संभावना है वो कम हो जाएगी। तो सबसे पहले आप याद रखिए रूल ऑफ ट्रायंगल में आपको स्टॉप करना है, आपको ड्रॉप करना है एंड देन आपको रोल करना है। फिर से मैं एक बार रिपीट करूंगा, स्टॉप करना है, ड्रॉप करना है एंड देन रोल करना है किसी भी लाइव फायर के मौके पे। अब ये सब तो हो गया। अब मैं आपको बताऊंगा कि फायर सब कुछ होने के बाद में आपको करना क्या है। सबसे पहले तो इंसान बहुत पैनिक हो जाएगा, उसे शांत करवाना है, एक जगह पे प्रॉपर्ली बैठा के शांत करना है। बॉडी पे आसपास कोई भी एक्टिव ज्वेलरी या कुछ भी पहना हुआ है तो क्लोथिंग है जो पॉसिबली हम रिमूव कर सकते हैं, तो उसे सबसे पहले हमें रिमूव करना है। सबसे फर्स्ट पॉइंट में हमें वही दिया है कि रिमूव ऑल द क्लोथिंग एंड ज्वेलरी दैट इजंट स्टक टू द बर्न। बर्न को जो भी स्टक नहीं है अराउंड द बर्न एरिया है, जैसे वॉच हो गया, आपका ब्रेसलेट्स हो गया, आपके जो भी ज्वेलरी है या कपड़ा है वो हमें रिमूव करना है। उसके बाद में 20 मिनट तक अंडर कूल रनिंग वाटर, आइस नहीं लगाना है हमें, कूल रनिंग वाटर में आपको वॉश करना है वो बर्निंग, ताकि किसी भी तरह का इन्फेक्शन ना हो आगे के लिए। और बर्न रनिंग वाटर में आपको वॉश करना है उस चीज को। ड्रेसिंग के लिए ध्यान रखिएगा किसी भी तरह का वेट बैंडेज या ऐसे कुछ भी आपने यूज नहीं करना है। आपको ड्राई ड्रेसिंग, बहुत ही ड्राई ड्रेसिंग जो क्लीन हो एकदम प्रॉपरली, वो आपको अप्लाई करना है। और आइस तो आपको बिल्कुल भी यूज नहीं करना है। आपने स्टार प्लस के बहुत से सीरियल्स में देखा होगा, सास बहू सीरियल्स में देखा होगा आपने कि नॉर्मल आइस यूज करते हैं बर्न के टाइम पे आपने आइस लगा दिया, ये आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। ये एक मिथ है कि आपको आइस यूज करना है, आपको रनिंग कूल वाटर में आपको उसको वॉश करना है। ये बात हो गई कि करना क्या है। अब अगले स्लाइड में आप ये देख सकते हो कि हमें क्या नहीं करना है। सबसे पहले कितना भी नॉर्मल मेजर बर्न हो, क्रिटिकल हो, सिवियर हो या मॉडरेट बर्न हो, आपको मेडिकली उसको प्रॉपर अटेंशन देना है, डॉक्टर के पास उसे लेके जाना है फर्स्ट एड के बाद में। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है कि डोंट एज्यूम द बॉडी इंजरी इज माइनर, सी अ डॉक्टर एज सून एज पॉसिबल। उसके बाद में डू नॉट यूज आइस और कोल्ड वाटर, जैसे मैंने आपको बताया किसी भी मूवी या सीरियल को इमिटेट नहीं करना है, आपको कोल्ड वाटर या आइस यूज नहीं करना है। ब्लिस्टर्स, छोटे छोटे मॉडरेट बर्न, 2nd डिग्री 3rd डिग्री बर्न में जो ब्लिस्टर्स आते हैं उसको हमें ब्रेक ओपन नहीं करना है, बर्स्ट नहीं करना है किसी भी तरह से उसको। डू नॉट अप्लाई बटर, ऑइंटमेंट और स्प्रे। बहुत से बड़े लोगों ने आपको कहीं बोला भी होगा, बोला नहीं बोला होगा कि ऑइंटमेंट यूज करना है, स्प्रे यूज करना है। हम बोलते हैं पेस्ट, टूथपेस्ट हम यूज करते हैं, ये ऐसे किसी भी तरह की चीज हमें यूज नहीं करना है। इंस्टेड अगर आपको कुछ यूज करना ही है तो आप एलोवेरा जेल यूज कर सकते हैं बर्न पे। डू नॉट रिमूव बर्न क्लोथिंग दैट इज स्ट्रक टू द बॉडी, जो चिपक चुका है बर्न के वजह से, तो ये चीज हमें खींच के बाहर नहीं निकालनी है, बिल्कुल भी नहीं करना है। इससे क्या होगा कि बर्न जो है स्किन का दूसरा एरिया भी आपका बाहर आ सकता है। ये चीज डॉक्टर के लिए हम छोड़ देते हैं। आपको प्रॉपर बस ड्राई ड्रेसिंग के ध्यान देना है और बाकी जो फर्स्ट एड चीजें हमने बताई है उस पर ध्यान देना है। ये तो सारी चीजें, ये बर्न का सेशन जैसे हम सब कुछ मैंने लगभग बता ही दिया है, व्हाट टू डू, व्हाट नॉट टू डू, स्किन के टाइप्स, डिग्री ऑफ बर्न्स, रूल ऑफ 9। मैं चाहूंगा पार्टिसिपेंट्स में से, बच्चों में से कोई एक इंसान हैंड रेज करे
और अनम्यूट होके मुझे एक छोटा सा रिव्यू दे कि बर्न में आपने क्या क्या सीखा। जैसे हम ये सेशन के एंड तक आ ही चुके हैं। कैमरेज में चाहूंगा सभी ने अपने फ्रंट कैम, लैपटॉप या फोन के जो फ्रंट कैम है वो सभी ने ऑन करने हैं, हैंड रेज करना है। और कौन मुझे छोटा सा रिव्यू देगा? कंप्यूटर जी, किसी को भी एक रैंडमली आप अनम्यूट कर दीजिए ताकि छोटा सा रिव्यू हम एक ले सके बच्चों का, और क्लियर हमें समझ सके कि बच्चे और क्लियर हो रहे हैं इस टॉपिक को लेकर। कोई भी पार्टिसिपेंट्स में से अपना हैंड रेज करे, या कंप्यूटर जी किसी रैंडम को, किसी को भी अनम्यूट कर दीजिए। यस, कबीर सैनी, इफ आई एम टेकिंग योर नेम राइट, आप अनम्यूट कीजिए अपने आप को। एक छोटा सा रिव्यू अगर आप मुझे दे सके, कबीर सैनी। Yes, sir. Sir, in this session, I would give the review like if we have the burn, we can suggest anyone to stop. Like in the panic situation, everyone goes here and run here and there, so we can tell him to stop and then lay down and then roll so that the fire does not spread to his another body parts. And we should not apply any type of toothpaste and ice on the burned burned part, so that if it does not damage the skin of the burn. करेक्ट, वेरी करेक्ट कबीर जी। मुझे आप स्किन के 3 टाइप्स के बारे में, 3 लेयर्स के बारे में बताना चाहोगे? आपको याद है मैंने क्या बताया था स्किन के 3 लेयर्स के बारे में? इफ यू रिमेम्बर, अनम्यूट कीजिए अपने आप को, अनम्यूट कीजिए कबीर जी, अनम्यूट योरसेल्फ। Yes, sir. Sir, the first layer of the skin is, sir, epidermis. Epidermis. The first layer is epidermis, the second layer is dermis, and the third layer is hypodermis. क्या बोल रहे हैं? Epidermis, dermis, and hypodermis. The first layer of skin. The first layer of skin is known as epidermis. The second layer is known as dermis, and the third layer is known as hypodermis. I hope आपको समझ में आ गया होगा कबीर जी। सुन सकते हो आप मुझे? आप, मैं ऑडिबल हूँ प्रॉपर्ली? आई होप सभी बच्चों को भी ये। Sir, you are not audible to me. आदर्श जी, एम आई ऑडिबल? मेरा आवाज आ रहा है ठीक से? आ रहा है सर, आ रहा है। तो फर्स्ट लेयर ऑफ स्किन एपिडर्मिस, सेकंड लेयर ऑफ स्किन इज डर्मिस, एंड थर्ड लेयर ऑफ स्किन इज हाइपोडर्मिस। ये 3 लेयर ध्यान रखना है आपने, इससे हम डिग्री ऑफ बर्न को कैलकुलेट करेंगे। कबीर जी, वेरी थैंक यू, आपने बहुत बढ़िया एक रिव्यू दिया हमें। हम अपने अगले टॉपिक की ओर बढ़ते हैं, जिसे हम चोकिंग कहते हैं। चोकिंग क्या होता है? whenever a foreign object usually is struck in the food pipe, known as trachea, the airway. मतलब choking means a foreign object, usually a food or a toy, is struck in the trachea, the airway, and when this happens, the airflow normally cannot flow in or out of the part of the trachea. We cannot breathe properly. किसी भी तरह का ऑब्जेक्ट, फॉरेन ऑब्जेक्ट जो बाहर हम इनटेक कर रहे हैं, वो अगर अपने ट्रैकिया, फूड पाइप या फिर विंड पाइप कहीं पे भी फंस जाए तो उसे हम चोकिंग कहते हैं। चोकिंग किस आइटम्स की वजह से लीड हो सकता है? लाइक व्हाट आइटम्स विल लीड टू चोकिंग? स्मॉल राउंड स्लिपरी फूड, नट्स एंड सीड्स। आप स्क्रीन पे देख सकते हो सारे आइटम्स, आप नोट कर लीजिए। टाइनी टॉयज, बटन्स, बैटरीज, कॉइन्स, ये जो चीजें हैं बच्चे यूजुअली स्वॉलो कर लेते हैं, अंदर ले लेते हैं। वो एज 7 to 15 के इयर्स ऑफ एज में यूजुअली पाया जाता है चोकिंग का प्रॉब्लम, क्योंकि बच्चे नादान होते हैं, कुछ रख लिया मुंह में और स्वॉलो कर लिया उस चीज के लिए। कॉइन अपना हो गया, नॉर्मल बटन, बैटरीज हो गया, छोटे छोटे जो टॉयज होते हैं उनके, या फूड आइटम्स जो प्रॉपर या फिर इरेगुलर शेप के होते हैं, जो प्रॉपर शेप के नहीं होते हैं, वो अटक जाते हैं ट्रैकिया में। तो इस चीजों की वजह से चोकिंग का प्रॉब्लम होता है। अब ऐसी क्या एनकरेज हमें करना है जिससे चोकिंग का प्रॉब्लम ना हो? मैं आपको बताना चाहूंगा कि हर मील में आप हर फूड के बाद में, हर माउथफुल फूड के बाद में अपना थ्रोट, अपना माउथ प्रॉपर्ली क्लियर कीजिए। अब पूरा एक खाने के बाद में ही आपको दूसरा माउथफुल ऑफ फूड आपको लेना है। यू शुड नॉट
टॉक वाइल टॉकिंग, ये सभी ने आपको बताया होगा कि यू शुड नॉट टॉक, बट किसी ने रीजन नहीं बताया होगा। मैं आज आपको उसका रीजन बताना चाहूंगा कि खाते वक्त बात करने से इफ यू टॉक वाइल टॉकिंग द प्रॉब्लम इज यू कैन लीड टू चोकिंग। यू शुड च्यू योर फूड थरोली। आप बड़े बड़े बाइट्स के फूड लेते ड्रिंक वाटर व्हाइल फूड इज इन योर माउथ। फूड एंड वाटर एक साथ में क्या चोकिंग का प्रॉब्लम आपको हो सकता है। टेक स्मॉल बाइट्स, छोटे बाइट्स आपको लेने हैं। इससे क्या होगा कि जल्दी फूड आपके ट्रैकिया से पास हो जाएगा, उसको कोई दिक्कत नहीं है, चोकिंग का प्रॉब्लम होगा। अब आपको समझेगा कैसे सामने वाला इंसान जो भी आपके सामने डाइनिंग टेबल पे या कहीं पे प्रॉपर्ली फूड ले रहा है तो चोक कर रहा है, उसको चोकिंग का प्रॉब्लम हो रहा है। तो सिम्टम्स क्या है मैं आपको बताना चाहूंगा। सबसे बेसिक और सबसे पहले विक्टिम का हाथ अपने गले पे रहेगा। गले पे होने से वो कॉफ करेगा, वो खांसी करेगा, करने से आपको समझेगा कि गले पे हाथ है और कॉफ कर रहा है तो सामने वाले को चोकिंग का प्रॉब्लम हो रहा है। choking on food and drink, choking during or after swallowing, choking or vomiting of the food, जो खाना उसने खाया है वो उसको वॉमिट नहीं करेगा, उसका वॉमिटिंग की प्रॉब्लम की वजह से गले पे हाथ एक खांसी कर रहा है और वो वॉमिट कर रहा है। इसका यही मतलब है कि चोक कर रहा है, सामने वाला इंसान चोक कर रहा है। उसकी वॉइस जो है रेगुलर वॉइस से वॉइस पूरी सॉफ्ट रहेगी। एक सॉफ्ट वॉइस आप बोल सकते हो कि उसको चोक getting food into your lungs, जहां से हम और drooling, difficulty chewing, चबने में तकलीफ, trouble in moving your food to your mouth, जो सबको खाने तक food is sticking in your throat. जो चाइल्ड है उनसे हम अलग डील करेंगे, प्रेग्नेंट लेडीज है उनसे हम अलग तरीके से डील करेंगे एंड अगर करेंगे इन सबके दिखाएंगे कि जो तरह से ने एक वीडियोस बनाया प्रॉपर्ली कंप्यूटर इंजीनियर आप वीडियोस को प्ले कर सके एब्डोमिनल थ्रस्ट के लिए। ज़ाइफाइड फास्ट में एब्डोमिनल थ्रस्ट देते हैं। मैं वीडियो के टाइम आपको बताऊंगा कि ज़ाइफाइड प्रोसेस क्या होता है, एब्डोमिनल थ्रस्ट सर क्या होता आपका है। वॉइस ब्रेक हो रहा है थोड़ा। सुन पा रहे हो मुझे? हेलो, बीच बीच में थोड़ा ब्रेक हो रहा है। अब ओके है? हाँ आ रहा है। और या तो सर हेलो हेलो या आवाज आ रहा है मेरा? हाँ जी, यस, कैन यू हियर मी? यस सर। यस, सो कंप्यूटर जी मैं आपको बोलना चाहूंगा कि हेल्मिक मैन्योर की जो वीडियो आप ले ताकि हम बच्चों को और तरीके से समझा सके। हेल्मिक मैन्योर के लिए आप ये प्रोसेस आपको याद रखना है कि आप से चोकिंग के टाइम पे आपका हाथ जो होगा गले पे दिखेगा। जो भी विक्टिम होगा आप देख सकते हो वीडियो में हाथ गले पे है, गले पे हाथ होने की वजह से हम समझ सकते हैं कि ये चोक कर रहे हैं। पास में हमें जाना है और इन्हें पूछना है आर यू ओके, आर यू फाइन। आपको आप बोलेंगे कि नहीं आई हैव अ प्रॉब्लम। उस तरीके से आपको इन्हें अपने आगे लाके खड़ा करना है और इन्हें बैक ब्लोज देने हैं। बैक ब्लोज किस तरह से देने हैं ये देखिए। सबसे पहले आपको उनका हाथ रिलीज करना है और आपको बैक ब्लोज देने हैं 5 बार। आपको पीठ पे बैक ब्लो देना है, आपको पीठ पे देना है बैक ब्लो 1 2 3। इस तरह से ऊपर की तरफ आपको थ्रस्ट देना है इन्हें पीछे से पीठ पे। इनके हैंड रिलीज करने के बाद में
इस तरह से क्या होगा कि वो वॉमिट अप कर पाएंगे फूड को। इसके बाद में हम हेल्मिक मैन्योर का जो प्रोसेस है वो देखेंगे। सबसे पहले हेल्मिक मैन्योर के लिए विक्टिम के दोनों लेग्स के बीच में हमें अपना एक लेग रखना है, मेजर लेग। उसके बाद में 5 बार हमें बैक ब्लोज देके जाइफाइड प्रोसेस पे हमें हेल्मिक मैन्योर देना है हमें। सर एक बार लीव करके वापस ज्वाइन कीजिए ना। यस सर, ओके, मैं करता हूँ। तो इसको मैं आगे बढ़ाता हूँ। जैसे कि अगर बैक ब्लोज से ऑब्जेक्ट बाहर नहीं निकलता है तो हमें हेमलिक मैन्यूवर देना है। हेमलिक मैन्यूवर के लिए आपको अपने रिस्ट को एक मुट्ठी की तरह बांधना है, अंगूठा भीतर रख करके, जैसे आप देख पा रहे हैं वीडियो में। फिर हमें अपना जो ये बोन है थंब का, उसको यूज करना है। जो हमने मुट्ठी बनाई है, एक बोन फॉर्म हो गया है, उसको थंब को हम यूज करेंगे। अपना जो रिब केज जहाँ पे बाइफरकेट होता है, उसके ठीक 2 उंगली नीचे जो है हमें उसे प्लेस करना है, और दूसरे हाथ से हमें उसको होल्ड करके रोल करना है। जैसे एक बॉटल ओपनर की तरह बॉटल खोलते हैं, उस तरह से प्रेशर देना है एब्डोमिनल पे। इसको बोलते हैं एब्डोमिनल थ्रस्ट। ये हमें 5 टाइम्स या ज्यादा करना है, रिपीट करना है, कि जब तक उसका ऑब्जेक्ट जो है गले में जो अटका हुआ है वो बाहर आ जाए। तो इस तरह से देखिए हमारे जो कैडेट है अब काफी रिलीफ महसूस कर रहे हैं, और उनका जो फॉरेन ऑब्जेक्ट जो फंसा हुआ था गले में वो बाहर आ चुका है। एक चीज बच्चों ध्यान देना है कि आपको ऐसे ही किसी के ऊपर ये ट्राई नहीं करना है, क्योंकि ये बहुत ही प्रेशर वाला चीज है। अगर हम ऐसे ही ट्रायल के रूप में अगर किसी के ऊपर हम ट्राई करते हैं तो वो वोमिट कर सकता है, उसे उल्टी आ सकती है। तो ये हमें जब उसी के साथ यूज करना है जब कोई पेशेंट चोकिंग से सफर कर रहा हो, नहीं तो हमें ये नहीं करना है। तो हमारे साथ नवीन जी जुड़ गए हैं। I will ask Naveen ji to take the session from here. हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम नवीन भंडारी है। आई होप आप सब बहुत अच्छे हो इस पेंडेमिक सिचुएशन में, अपना टेक केयर कर रहे हो। सो मैं आज आपका नेक्स्ट टॉपिक लूंगा, वो है ब्लीडिंग। सो ब्लीडिंग, हाँ बोलिए सर। श्रेणिक जी सर आ गए हैं। ओके, कोई दिक्कत नहीं है सर। श्रेणिक जी कंटिन्यू कर ले एक बार, कोई इशू नहीं। सर वॉइस क्लियर नहीं आ रहा है उनका। सर शायद ओके नवीन जी, मैं एक अडल्ट चाइल्ड वाला चोकिंग कंप्लीट कर देता हूं, देन वी विल मूव फॉरवर्ड टू ब्लीडिंग। ठीक है सर। तो जैसे कि आपने देखा कि अगर किसी अडल्ट या किड्स को अगर चोकिंग हो जाता है तो हमें क्या करना है। पर कई बार क्या होता है, इन्फेंट्स जो हैं वो भी चोकिंग से ग्रसित हो जाते हैं। तो ऐसी केस में हम जो है थोड़ा प्रोसीजर को डिफरेंट प्रोसीजर यूज करेंगे। तो वो मैं आपको एक वीडियो के माध्यम से समझाऊंगा कि कैसे एक इन्फेंट को चोकिंग से रिलीफ पहुंचाया जाए, उसे कैसे उसका फॉरेन ऑब्जेक्ट जो गले में फंसा है उसे बाहर निकाला जाए। तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि हमारे कैडेट यहाँ पे हेल्प करेंगे एक इन्फेंट को चोकिंग से जो सफर कर रहा है। पहले एक अपने कंफर्टेबल पोजीशन बना के हमें बैठना है। हम चाहें तो अपना एक लेग दूसरे लेग के ऊपर रख करके एक लैप टाइप का बना सकते हैं। फिर उस लैप के ऊपर कंफर्टेबली चाइल्ड को जो है लेटाना है इजीली। और जैसे कि हमने अडल्ट में देखा था कि हमने एब्डोमिनल थ्रस्ट में अपना पूरा जो पंजा यूज किया था, अपना पूरा मुट्ठी यूज किया था। इस केस में हम सिर्फ 2 फिंगर्स का इस्तेमाल करेंगे। हम 2 फिंगर्स को जो है उससे एब्डोमिनल थ्रस्ट जो है हेमरेज मैन्यूवर इन्फेंट को देंगे 5 टाइम्स हम उसे, और ये काम हम बहुत आराम से करेंगे। जैसे कि हमने अडल्ट्स के टाइम में काफी प्रेशर यूज किया था, उतना प्रेशर नहीं यूज करेंगे, आराम से करेंगे। इसमें अगर ऑब्जेक्ट निकल जाता है तो ठीक है, नहीं तो फिर हम ऐसे अपने हाथ को एक वी शेप बना लेंगे, 2 फिंगर्स ज्वाइन करके। और ये बीच वाला जो स्पेस है उससे क्या है, जो इन्फेंट का नोजल एरिया जो है वो वैकेंट रहेगा ताकि उसको ब्रीदिंग में प्रॉब्लम ना हो। और एक कप टाइप का हमारा जो है हैंड बन गया है, कोई ऑब्जेक्ट अगर निकलेगा तो उस कप में आ जाएगा। फिर हम उसे उल्टा आराम से उल्टा लेटा देंगे और अपना दूसरे हैंड से हम उसे 5 टाइम्स बैक ब्लोज देंगे और बड़े आराम से देंगे। ज्यादा फोर्स हम यूज नहीं करेंगे चाइल्ड इन्फेंट के केस में, क्योंकि वो बहुत डेलिकेट होते हैं।
तो जैसा कि आप देख रहे हैं, हमारे कैडेट बैक ब्लोज दे रहे हैं इन्फेंट को। हम धीरे धीरे आराम से 5 टाइम्स और मोर उसे बैक ब्लोज देंगे। इसमें क्या है कि वो फॉरेन ऑब्जेक्ट जो भी ऑब्स्ट्रक्शन है वो जो है रिलीज हो जाएगा, पर बच्चा जो है वो अपने आप उसे बाहर नहीं निकाल सकता मुंह से। तो हम अपनी लिटिल फिंगर का इस्तेमाल करके उसके मुंह से वो ऑब्जेक्ट निकाल देंगे। तो ये केस था कि जब किड इन्फेंट्स को चोकिंग हो जाए तब हमें क्या करना है। और 2 कंडीशंस हमारे पास प्रेजेंट हो सकती हैं। कई बार क्या होता है कि हम अकेले होते हैं, तो ऐसे केस में हमें क्या करना चाहिए, जब हमारी कोई हेल्प करने वाला नहीं है, तब हम एक कोई भी सॉलिड सरफेस का यूज कर सकते हैं। जब हम अलोन हो, सबसे पहले तो अपने आसपास के जो खिड़की दरवाजे हैं वो खोल दें ताकि एयर सर्कुलेशन अच्छा रहे और कोई हेल्प करने आपको आ सके इजीली। फिर हम एक सॉलिड सरफेस का यूज करके हम खुद को ही अपने आप को हेमलिच मैन्यूवर देंगे, जैसे कि हमने अडल्ट और किड्स के केस में किया था। ऐसे ही रिस्ट बना करके और हार्ड सरफेस के हेल्प से हम उसके ऊपर हमारे एब्डोमिनल को पुशअप करके खुद को ही हेमलिच मैन्यूवर देंगे। इससे चांसेस ये है कि जो फॉरेन ऑब्जेक्ट जो फंसा हुआ है वो निकल जाए। और खांसने की कोशिश करेंगे। खांसने की कोशिश करने में भी क्या होता है कि जो ऑब्जेक्ट कुछ अटका हुआ रहता है गले में, वो बाहर निकल जाता है। तो ये केस था जब हम अकेले हों। पर प्रेग्नेंट लेडी और ओबीस पर्सन के टाइम में हम कुछ डिफरेंट करते हैं। हम उन्हें जो हम जाइफर्ड प्रोसेस पे जो हम उनको एब्डोमिनल थ्रस्ट देते थे, वहां नहीं देंगे। हम जहां पे हम उनके ब्रेस्ट बोन के बेस पे जो है ये एब्डोमिनल थ्रस्ट देंगे, हेमलिच मैन्यूवर का परफॉर्म करेंगे। ये ब्रेस्ट बोन का बेस क्या होता है, जो अपना ज्वाइनिंग लोएस्ट रिब्स का जो ज्वाइनिंग है, वहां पे हम उन्हें एब्डोमिनल थ्रस्ट देंगे, हेमलिच मैन्यूवर देंगे। और यूजुअली दूसरे केसेस में हम क्या करते थे, उससे 2 फिंगर नीचे देते थे। तो इस जगह पे हम उन्हें हेमलिच मैन्यूवर देंगे और वो जो फूड पार्टिकल है जब तक नहीं निकल जाता हम उसे रिपीट करेंगे। तो ये केस है प्रेग्नेंट वुमेन और ओबेस पर्सन के लिए। तो अब क्या ध्यान रखना है हमें कि बच्चे को चोकिंग हो ही ना। तो सबसे पहले तो ये जरूरी है कि हम उसको सुपरवाइज करें, मॉनिटर करें। जब बच्चा खा रहा हो हम उसके आसपास रहें और ये करें कि वो ठीक से खा रहा है, सीधा बैठा हुआ है, स्टेशनरी पोजीशन में है, आराम से खा रहा है। फिर उसके खेलते वक्त भी हमें बहुत ध्यान रखना है कि वो छोटी चीजों से ना खेले, क्योंकि कई बार क्या होता है छोटी चीजों से जब वो खेलता है तो बच्चे अपने मुंह में वो ले लेते हैं और वो गले में जाकर के जो है अटक जाता है। कॉइन्स वगैरह ऐसी चीजें हम बच्चों को ना दें कि ऐसी परेशानी उत्पन्न ही ना हो कि वो चोकिंग से सफर करें। तो स्टूडेंट्स साथियों, आज आपने समझा कि चोकिंग अगर किसी को हो जाए आपके आसपास में, या आपको खुद को भी चोकिंग हो जाए, तो आप क्या कर सकते हैं और कैसे जीवन रक्षा कर सकते हैं। तो अब मैं चाहूंगा नवीन जी जो है यहाँ से आगे के टॉपिक्स कवर करेंगे। हेलो हेलो, एम आई ऑडिबल सर? हेलो सर, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी सर, आ रही है आवाज। यस सर, ठीक है सर। अभी हम शुरू करेंगे ब्लीडिंग से। ब्लीडिंग, बिफोर ब्लीडिंग पहले मैं आपको बताना चाहूंगा व्हाट इज ब्लड। ब्लड इज अ रेड ऑब्जेक्ट विच इज प्रेजेंट इन आवर बॉडी। मतलब इट इज एन लिक्विड फॉर्म, एक ऑब्जेक्ट होती है जो हमारे शरीर के अंदर प्रेजेंट रहती है। ठीक है, अभी एक बार मैं आप लोगों को चैट बॉक्स में फटाफट बुलाना चाहूंगा, जितने भी स्टूडेंट्स हैं, जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं। एक क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है, हाउ मेनी लीटर्स ऑफ ब्लड डज द एडल्ट ह्यूमन बॉडी कंटेन? ऑप्शन ए 5 लीटर, ऑप्शन बी 10 लीटर्स, ऑप्शन सी 15 लीटर्स। सो आप सब चैट बॉक्स में आके मुझे फटाफट जवाब दे दें। मोर 5 सेकेंड्स। 4, 3, 2, 1, टाइम अप, ओवर। वेरी गुड, आप सभी ने सही जवाब दिया, लगभग सही सभी ने। सिर्फ 2-3 जन ने 10 लीटर्स लिखा है, जितने ने भी 5 लीटर्स लिखा है उन लोग का करेक्ट आंसर है। सो हमारे बॉडी में सिर्फ 5 लीटर ब्लड प्रेजेंट है। नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट स्लाइड। व्हाट डज ब्लड डू? ब्लड का काम क्या है? ब्लड हमारे पूरे बॉडी में प्रेजेंट है। वो इट इज अ ट्रांसपोर्टिंग एजेंट। ब्लड क्या है? इट इज अ ट्रांसपोर्टिंग एजेंट विच ट्रांसपोर्ट, जो हम ऑक्सीजन इनहेल करते हैं
वो ट्रांसपोर्ट करती है। जो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है, उन न्यूट्रिशंस जितने भी रहते हैं वो सारा कुछ ट्रांसपोर्ट करती है। ब्लड का यही मैकेनिज्म है कि ये जो भी हम इनहेल कर रहे हैं वो ट्रांसपोर्ट करना, एक्सेल जो कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेल कर रहे हैं वो ट्रांसपोर्ट करना, एंड जो न्यूट्रिशंस है उन सबको ट्रांसपोर्ट करना है। तो ये एनर्जी दिया जाता है। इट इज एन मतलब फंक्शनिंग, ये फंक्शन करता है हमारे को, काम सपोर्ट सिस्टम है जिससे हम काम और कर सकते हैं। नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट, पल्स लोकेशन। अब पल्स लोकेशन क्या है, इसका क्या काम है वो आपको मैं नेक्स्ट स्लाइड में बताऊंगा, लेकिन पल्स लोकेशन क्या पहले वो जान लेते हैं। वैसे हमारे बॉडी में बहुत सारे पल्स लोकेशंस हैं, बट हम लोग सिर्फ 3 में ही कंसेंट्रेट करेंगे। फर्स्ट हो गया कैरोटिड। कैरोटिड क्या है कि ये हमारा जो बोन है ये वाला गले के पास उस तरह प्रेजेंट रहती है। आप अपना हाथों से उधर छू के देखो, एक हल्का सा वाइब्रेशन हो रहा है, एक धक 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 एक बीट हो रहा है, हार्ट बीट टाइप हो रहा है। तो दैट इज द फर्स्ट पल्स लोकेशन नोन एज कैरोटिड। नेक्स्ट हो गया रेडियल। रेडियल हो गया जो हमारे हाथ में प्रेजेंट है। देखो आप कितनी बार हॉस्पिटल में जाते हो, डॉक्टर के चेकअप कराने जाते हो, तो डॉक्टर हमारा हाथ को छूता है इस तरह से, एंड आप भी ट्राई कर सकते हो इस जगह पे, या फिर राइट हैंड या लेफ्ट हैंड कहीं भी आप टच कर लो अपना, इस जगह पे छू के देखो, एक वाइब्रेट धक 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 हार्ट बीट हो रहा है। दैट इज द सेकंड रेडियल। नेक्स्ट हो गया फेमोरल। फेमोरल ये हमारे थाइज में प्रेजेंट रहता है। ये बेसिकली बच्चों के लिए होता है कि जब न्यू ग्रोन बेबी जो चाइल्ड बर्थ होता है, उन लोग के हाथ में हम लोग हार्ट बीट सेंस नहीं कर सकते हैं। सो डॉक्टर्स क्या करते हैं, उन लोग के थाइज में टच करके वो हार्ट बीट उन लोग को पता चल जाता है। कितनी बार देखते हैं इंजेक्शन भी थाइज और में दिया जाता है, जो वेन का इंजेक्शन होता है, तो वहां पे ही दिया होता है वो काम। अब नेक्स्ट आ गया हमारा ब्लीडिंग। अभी किसी को अगर ब्लीडिंग हो रहा है, या फिर आप ही को हो रहा है, या आपके किसी नेबर को हो रहा है, तो आपको क्या करना है? सबसे पहले 108 में फोन करना है, बोलना है कि सर यहाँ पे एक एक्सीडेंट हो गया है, किसी पर्सन की ब्लीडिंग हो रही है, और आप फटाफट आ जाओ, मैंने फर्स्ट एड दे दी है। आपने ये तो बोल दिया फर्स्ट एड दे दी है, बट क्या दिया क्या किया वो अभी मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ कि क्या करना है। सबसे पहले जहां पे भी इंजुरी है उसको हार्ट लेवल से, मतलब हमारे जो दिल है उससे लेवल से ऊपर लेके जाना है, ठीक है? वो उस लेवल से लेके जाओगे तो जो हमारे जो ब्लड पंपिंग होती है वो स्लो हो जाएगा, वो रिड्यूस हो जाएगा, तो ब्लड का जो फ्लो है वो स्लो डाउन हो जाएगा। जैसे कि हम जानते हैं कि हमारे बॉडी में सिर्फ 5 लीटर ब्लड रहता है, अगर 1 लीटर या कुछ भी 2 लीटर भी अगर हमारे बॉडी से कम हो जाए तो वो हमारे को नुकसान है। तो हम कोमा में जा सकते हैं, हम बेहोशी की हालत में जा सकते हैं, या फिर किसी पर्सन की डेथ भी हो सकती है। तो नेक्स्ट हो गया, अभी हमको कंट्रोल करना, ब्लीडिंग हो रहा है, तो हम कैसे करेंगे? फर्स्ट मेथड इज नोन एज डायरेक्ट प्रेशर मेथड। डायरेक्ट प्रेशर कैसे देंगे? आप इमेज 1 में देखो, जहां पे भी इंजरी आई हुई है वहां पे हम डायरेक्टली प्रेस कर देंगे उसको, उस कपड़े से, कोई भी एक फ्रेश कपड़ा लेना, आप साफ कपड़ा, उससे डायरेक्टली प्रेशर देना हमारे को। और एक और बात की ध्यान रखना है कि उस कपड़े को हमारे को बार बार छेड़ना नहीं है, कि कपड़े हटा के देख रहे कि हाँ ब्लड रुका कि नहीं रुका, उसको थोड़ी देर 10-15 मिनट आधे घंटा तक डायरेक्ट प्रेशर देके ही उससे रखें। और वो कपड़ा तभी चेंज करना है जब वो पूरी तरह से ब्लड से गिला हो जाए। अगर वो गिला नहीं हुआ, अगर वो वेट नहीं हुआ, तो उसको आपको छेड़ना नहीं है, उसको बस डायरेक्ट प्रेशर देके ही रखो आप। नेक्स्ट हो गया प्रेशर पॉइंट मेथड। अभी आपको याद है मैंने बताया था पल्स लोकेशन वाला पार्ट, तो वही हमारा प्रेशर पॉइंट मेथड हो गया। उसमें बहुत सारी जगह पे आप एक बड़ा बड़ा स्पॉट भी देख रहे होंगे कि वो से वेन से उधर बहुत सारे बड़े बड़े गोल गोल राउंड राउंड बने हुए थे, तो वो सब हमारे सारे पल्स लोकेशन है, ठीक? तो अभी हमारे को क्या करना है? डायरेक्ट प्रेशर मेथड, प्रेशर पॉइंट मेथड। तो जैसे कि अगर हाथ में किसी को इंजरी आ जाए नीचे की तरफ, तो हम प्रीवियस इमेज जो हमारी थी उधर हम देख सकते हैं कि बाइसेप्स की तरफ उधर प्रेशर दिया था। अब इमेज 2 में देख लो ये वाला, कि किसी के घुटने में, किसी की नी में चोट लगी हुई है, तो हमने क्या किया, थाइज वाले एरिया पे उसको प्रेशर देके प्रॉपर्ली बांध दिया, उधर टाइटली बांधा, ताकि वो जो हमारा जो पल्स लोकेशन है, जो वेन, वो जो मेन पार्ट है, जो हम जंक्शन बोल सकते हैं, वहां पे हमने दबा दिया, और वो ब्लड का जो फ्लो है वो स्लो हो गया, स्लो डाउन हो गया। एंड देन एक और मेथड हो गया एलिवेशन। एलिवेशन का हो गया जो मैंने बताया था कि हमारे को हार्ट लेवल से ऊपर की तरफ उठना है, ताकि वो पंपिंग स्लो हो जाए,
एंड वो जो ब्लड का फ्लो है वो स्लो डाउन हो जाए। तो ये हमारा था कैसे हम कंट्रोल कर सकते हैं। नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट स्लाइड। अभी एक आप लोगों के लिए क्वेश्चन है, आइदर आप पोल पे आ जाओ या फिर चैट बॉक्स में आ जाओ, कि अगर किसी के नोज से ब्लीडिंग हो रहा है तो हमारे को क्या करना है? हमारे को हेड को बैकवर्ड रखना है या फॉरवर्ड रखना है? हमारे पास दो ऑप्शन है, आइदर बैकवर्ड आइदर फॉरवर्ड। तो फटाफट आंसर आ जाए सबके, फटाफट। मोर 5 seconds. 5 4 3 2 1 टाइम अप। ऑप्शन ए, आप सभी ने लगभग 80% ने ऑप्शन ए सिलेक्ट किया है, दैट इज हेड को हमारे बैकवर्ड करना है। और बहुत ही लिमिटेड पर्सन ने ही चैट बॉक्स में भी मेरे को लिखा कि फॉरवर्ड, किसी ने बी ऑप्शन सिलेक्ट किया था। मैं बोलना चाहूंगा कि आप 80% सब गलत हो, कि हमारे को बैकवर्ड नहीं करना है, हमारे को फॉरवर्ड ही करना है। नो डाउट आपने अपना लॉजिक यूज किया, अपने कॉमन सेंस यूज किया कि हाँ चलिए ब्लड निकल रहा, हमारे को पीछे की तरफ ही करना है, और हम करते भी यही हैं। स्कूल में कितनी बार ब्लीडिंग हो जाती है नोज से, तो टीचर हमारे को यही बोलते कि पीछे की तरफ करो, पीछे की तरफ करो, लेकिन हमारे को नहीं करना। क्यों नहीं करना वो मैं बताऊंगा अभी आपको। अगर हम सपोज बैकवर्ड लीन कर रहे हैं तो जो ब्लड निकल रहा है, फ्लो हो रहा है, वो हमारे नोस्ट्रिल्स में जो नाक है वहां पे जमा हो जाएगा, ब्लॉक हो जाएगा। यहाँ पे ब्लॉक हो जाएगा तो हम सांस कैसे लेंगे? और इनकेस अगर आपने प्रेशर देके सांस भी ले लिया तो वो लिक्विड आपके गला में जाएगा, गला में जाएगा तो वो चोकिंग वाला पार्ट याद आ गया, कुछ गला में फंस गया। जब एयर वाले ट्यूब में जब कुछ फंस जाता है तो ही हमारे को चोकिंग वाला होता है। तो उससे आपको कनेक्शन लेना है कि ब्लड अगर हमारा नोज हवा वाला पाइप में चला गई, जो एयर पाइप है उसमें चला गया, तो हमारे को चोकिंग हो जाएगा। तो इसलिए हमारे को क्या करना है, लीन फॉरवर्ड होना है। अब लीन फॉरवर्ड होना है तो ब्लड फ्लो हो रहा है, आपने कुछ प्रेशर नहीं देखा, तो इसको रोकना कैसा है? सबसे बेस्ट टेक्निक, जैसे हमारे नाक में दो नोस्ट्रिल्स है, अब जिससे भी ब्लड फ्लो हो रहा है, अगर दोनों से हो रहा है तो 5 सेकंड ये वाला बंद करो, 5 सेकंड ये वाला बंद करो। सांस लेने में भी कोई दिक्कत नहीं है, और इसको ये प्रेशर मिलता रहेगा ताकि वो जो ब्लीडिंग है वो कंट्रोल हो जाए। नेक्स्ट हो गया, एक कपड़े का टुकड़ा आप ले लें, एकदम हल्का सा, उसको आप अपने नोस्ट्रिल में, उसको अगर एक नाक से निकल रहा है उसको पैक कर दें हल्का सा, तो पैक कर देंगे तो उधर भी वो ब्लड वहां पे जमा हो जाएगा, एंड वो हमारा जो ब्लीडिंग वाला है वो ऑटोमेटिक रिपेयर होने शुरू हो जाएगा वहां पे। और हम ब्लड फ्लो इसलिए करते हैं ताकि जो इन्फेक्शन, जो भी इन्फेक्शन, हम सांस जब लेते हैं तो हमारे सांस के साथ में बहुत सारे पार्टिकल्स भी अंदर जाते हैं। तो अगर ब्लड को हम लोग उधर ही अंदर क्लॉट करते रहेंगे तो पार्टिकल्स अंदर जाएगा और वो कुछ आपको इन्फेक्शन हो भी सकता है, इन्फेक्शन का भी खतरा रह सकता है। तो इसलिए हम लोग चाहते हैं कि वो ब्लड फ्लो रहे और इन्फेक्शन का कोई खतरा ना रहे। नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट स्लाइड। अगर आपके बॉडी में कोई भी फॉरेन ऑब्जेक्ट इंसर्ट हो जाती है तो आपको क्या करना है? कॉमन सेंस यही बोलेगा उसको निकालो। जैसे कि एक इमेज 2 में आप देख सकते हो कि एक पर्सन में नेल घुस चुका है, एक उसको हम डालेंगे उसको बाहर की तरफ, लेकिन हमारे को ये बिल्कुल भी नहीं करना है। हमारे को क्या करना है कि फर्स्ट हमारे को ऊपर की तरफ एक ड्रेसिंग करना है, टाइटली ड्रेसिंग करना है। जैसे आप देख सकते हो इमेज में कि उसके हाथ के बीचों बीच उसकी कील घुसी है, तो जो एंकल वाला पार्ट है इस तरफ, इधर रिस्ट वाला, सॉरी नॉट एंकल, रिस्ट वाला जो पार्ट है इस तरह हमारे को टाइटली बैंडेजिंग करनी है। देन जहां पे भी इंसर्ट हुई है फॉरेन ऑब्जेक्ट, जो जैसे कि कील वो इंसर्ट हुई है, उसको हल्के हाथों से करना है। अब क्यों हल्के हाथों से करना है? अगर हम लोग टाइटली उसको करेंगे तो वो जो ऑब्जेक्ट है वो डिस्प्लेस हो जाएगी, वो मूव करेगी तो फर्स्ट थिंग आपको बहुत ज्यादा पेन होगा। नेक्स्ट हो गया कि उधर टिश्यू फट जाएंगे और आपका ब्लड और ज्यादा स्प्रेड होगा, तो हमारे को वो काम नहीं करना है। एंड देन अपना जो ये एल्बो वाला पार्ट इधर यहाँ तक हमारे को प्रॉपर टाइटली फिर से रैप कर देना, फिर से बांध देना है, और वही 108 फोन करना है आप लोगों को एंड बोलना है कि सर फटाफट आ जाओ, इंजरी है यहाँ पे। तो ये हो गया हमारा, अगर कोई फॉरेन ऑब्जेक्ट इंसर्ट हो जाए, कोई भी कील और घुस जाए तो हमारे को क्या करना है। अब इतनी देर था, ये सारा था एक्सटर्नल ब्लीडिंग के बारे में कि
अगर ब्लड हमारा निकल रहा है, आऊंगा इंटरनल ब्लीडिंग के ऊपर। कितनी बार अंदर भी हमारे खून आ जाता है, हमारे को पता नहीं चलता। तो उसके मैं पहले आपको सिम्टम्स बताऊंगी कि क्या क्या सिम्टम्स है। फर्स्ट सिम्टम्स हो गया, कितनी बार हम देखते हैं कि हमारे हाथ में या पैर में एक नील जम जाता है। जैसे इमेज 1 में आप देख सकते हैं, रेडिश पर्पल सा कलर जो नील है वो जमा हुआ है, तो वो इंटरनल ब्लीडिंग हो गया वो वाला पार्ट। ठीक, तो ये फर्स्ट मतलब ये हम विजुअलाइज कर सकते हैं कितने फर्स्ट सिम्टम्स हो गया ये विजुअलाइजेशन वाला। अब हो गया कि कितनी बार इंटरनल रहती है लेकिन हमारे को पता भी नहीं चलता है, तो उसके हमारे को क्या क्या सिम्टम्स है। फर्स्ट सिम्टम्स आ गया कि आपको वीकनेस लगेगी, आंखों से कम दिखेगा आपको, बेहोशी की हालत रहेगी, चेस्ट में पेन होगा, न्यूशिया हो गया, न्यूशिया का मतलब हो गया वोमिटिंग का सिम्टम्स रहेगा, और बहुत ज्यादा सीवियर पेन रहेगा उस पर्टिकुलर एरिया में जहाँ पे भी आपकी इंटरनल ब्लीडिंग हुई है। तो ये कुछ सिम्टम्स हैं इंटरनल ब्लीडिंग का। अब नेक्स्ट स्लाइड में अब व्हाट टू डू, अब हमारे को क्या करना है। अगर आपको हो गया तो वो मैं ट्रीटमेंट अभी बता रहा हूँ, अगर किसी अदर पर्सन को हुआ है तो उसको यही बोलना है कि प्लीज काम, मतलब शांत रहें आप, मैं आपको ट्रीटमेंट अभी देने जा रहा हूँ, आपको बहुत ज्यादा रिलीफ हो जाएगी। और नेक्स्ट मैंने हॉस्पिटल में फोन कर दिया है, एम्बुलेंस आ रही है अभी, अब जस्ट शांत रहे। अगर वो आदमी शांत नहीं रहेगा तो वो फ्रस्ट्रेट रहेगा और वो घबराएगा तो वो डरा हुआ रहेगा। तो उसको डराना नहीं है, उसको हमारे को रिलीफ देना है। तो रिलीफ के लिए क्या करेंगे हम, नॉर्मल सबसे इजी चीज है बर्फ। हमारे घर में, आस पड़ोस में, फ्रिज में, कहीं पे भी एवरीवेयर हमारे बर्फ तो वेरी इजीली अवेलेबल रहती है। तो हम क्या करेंगे, एक आइस पैक बनाएंगे। आइस पैक कैसे बनाएंगे, बर्फ लेना है, उसको एक रैप कर देना कपड़े से, बस उतना ही करना है। रैप करने के बाद में जहाँ पे भी इंजुरी आई हुई इंटरनल वाली, वहां पे उसको हमारे को प्लेस कर देना। अगर हाथ में इंटरनल इंजुरी आ गई तो उधर प्रेस कर देना हमारे को। उधर प्रेस कर देते वक्त आपको पेन जो है वो रिलीफ हो जाएगी, आपको काफी आराम मिलेगा। तो ये वाला था इंटरनल ब्लीडिंग के बारे में। तो अभी आएंगे हम फ्रैक्चर के ऊपर, फ्रैक्चर वाला पार्ट। व्हाट इज फ्रैक्चर? फ्रैक्चर का मतलब कोई भी हड्डी टूट जाना, मतलब कंटिन्यूटी ऑफ द बोन अगर ब्रेक हो जाए तो वो होगा फ्रैक्चर। फ्रैक्चर दो टाइप के होते हैं, पार्शियल ब्रेक एंड कंप्लीट ब्रेक। इमेज 1 में आप देख सकते हो पार्शियल ब्रेक है, इमेज 2 में आप देख सकते हो कंप्लीट ब्रेक है। तो पार्शियल ब्रेक हो गया हल्का सा ब्रेक होना, मतलब थोड़ा सा डिस्प्लेस होना जाना, और जो कंप्लीट ब्रेक हो गया वो टूट के अपने एरिया ही चेंज कर देना पूरा। ये बेसिकली कंप्लीट ब्रेक जो है बेसिकली एक्सीडेंट केसेस में जो होता है, रोड एक्सीडेंट्स में हम लोग देखते हैं ये वाली चीज। नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट, सम फैक्ट्स अबाउट फ्रैक्चर। फ्रैक्चर के बारे में कुछ फैक्ट्स जानेंगे, कैसे क्या होता है फ्रैक्चर। पहला फैक्ट हो गया कि मोस्ट बोन फ्रैक्चर आर कॉज्ड बाय फॉल एंड एक्सीडेंट, मतलब कोई भी एलियन फोर्स अगर उस बोन पे आ जाए, उस पर्टिकुलर एरिया पे आ जाए बहुत ज्यादा, तो ही आपका फ्रैक्चर होने का चांसेस रहेगा। जैसे आप दौड़ रहे हो और गिर गए खेलते खेलते, स्टेयरकेस से उतर रहे हो, गिर गए, पैर स्लिप हुआ, गिर गए आप, तो फ्रैक्चर हो गया। एक्सीडेंट केसेस में अभी थोड़ी देर मैंने पहले बताया था। तो ये कुछ केसेस है। अगर हम कोई हड्डी पे एक्सटर्नल फोर्स लगाएंगे तो ही टूटेगा। आप ऐसे तोड़ के देख लो, नहीं टूटना अपना हड्डी, तो कोई एक्सटर्नल फोर्स लगेगा बहुत ज्यादा तो ही टूटना है। अभी नेक्स्ट हो गया एक पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर, मतलब बोन फ्रैक्चर कॉज्ड बाय डिजीज आर रेफर्ड एज पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर। मतलब कितनी बार कुछ हमारे बोन में कुछ डिजीज लग जाती है, वहां पे सड़ जाती है बोन, तब भी हमारा फ्रैक्चर होने का चांसेस रहता है। कोई जरूरी नहीं है कोई फोर्स ही लगे। कितनी बार जैसे कि आप, मैं एक सिंपल चीज बताऊंगा, हमारे जो हड्डी है वो आप एक वुडन स्टिक से कंपेयर कर लें। वुडन स्टिक को हम अगर प्रेशर देंगे तो ही टूटेगा। वुडन स्टिक में कोई कीड़ा लग गया, दीमक जो लग गया, उसको अंदर से खा गया, बाहर से तो दिख रहा है वेरी गुड है, लेकिन वो अंदर से सड़ गया वो, तो वो टूट जाएगा। सो लाइकवाइज हमारा बोन का भी यही सीन है, अगर हम प्रेशर देंगे तो ही टूटेगा, या फिर कोई दीमक मतलब कोई बैक्टीरिया लग गया, कोई वायरस लग गया इसमें, तो वो अंदर से सड़ने लग गया एंड देन वो टूट जाएगा। अभी नेक्स्ट आ जाएंगे कंपाउंड फ्रैक्चर। कंपाउंड फ्रैक्चर के बारे में मतलब क्या होता है कि जब हमारा फ्रैक्चर हमारी स्किन को भी फाड़ दे, स्किन को भी स्प्रेड करके बाहर आ जाए और वो ब्लड इंजरी कर दे, जैसे एक्सीडेंट वाला केस। आप कंपाउंड फ्रैक्चर मतलब एक्सीडेंट में कोई भी फ्रैक्चर हो गया तो वो कंपाउंड फ्रैक्चर जाएगा।
जैसे कि ब्लड आ रहा है, स्किन फट गया, हड्डी टूट गई, ये वो, तो दैट इज कंपाउंड फ्रैक्चर। नेक्स्ट आ गया एल्व्यूशन। एल्व्यूशन का मतलब होता है कि कोई भी हड्डी के छोटे 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 पार्टिकल्स हो जाना, मतलब अंदर ही स्प्रेड हो जाना, हड्डी के बहुत सारे पाउडर जैसे छोटे छोटे चिप्स बन जाना और हमारी स्किन के टिश्यू के उसमें स्प्रेड हो जाना, दैट इज एल्व्यूशन। नेक्स्ट हो गया कम्युनिकेटेड। कम्युनिकेटेड फ्रैक्चर का मतलब ये हुआ कि जैसे हमारे बोन का मोर देन 2 या फिर मोर देन 2 पीसेस हो जाना। अगर एक ही हड्डी, जैसे हमारी मेरी हाथ की हड्डी है, उसकी अगर 2 या 2 से ज्यादा टुकड़े हो गए तो दैट इज टर्म्स एज कम्युनिकेटेड। एंड देन हेयरलाइन फ्रैक्चर। हेयरलाइन फ्रैक्चर का मतलब बाल बराबर एक फ्रैक्चर हो जाना, मतलब एक हल्का सा एक लाइन आ जाना हड्डियों में, दैट इज नोन एज हेयरलाइन फ्रैक्चर। नेक्स्ट हो गया कि बोन, इसकी फ्रैक्चर की ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट यही है कि ये नेचुरल प्रोसेस से ही ट्रीट होता है, उसका कोई भी मतलब ऑपरेशन नहीं है। ऑपरेशन नो डाउट होता है, डॉक्टर क्या करते हैं, उस बोन को जो डिस्प्लेस हुआ रहता है उसको एक जगह पे लेके आ जाते हैं, बट वो जो प्लास्टर लग जाता है, फिर हम बोलते हैं कि 3 महीने तक प्लास्टर लगा हुआ रहेगा, तो 3 मंथ्स उसका नेचुरल हीलिंग प्रोसीजर है, जिससे हमारा वो जो हड्डी जो टूटी थी वो फिर से उसमें वो ज्वाइंट हो जाए। अभी नेक्स्ट आते हैं अपन सिम्टम्स के बारे में। अभी ये देख सकते हो आप एक इमेज में कि किसी के एंकल में फ्रैक्चर है, जो येलो वाला पार्ट है दैट इज एन फ्रैक्चर। तो हमारे को क्या क्या सिम्टम्स आ जाएगा, वहां पे एक सूजन आ जाएगी, मतलब स्किन जो है वो फूल जाएगी। नेक्स्ट हो गया मूवमेंट में पेन रहेगी, आप चल नहीं सकोगे, आप थोड़ा सा वजन दोगे आपको बहुत ज्यादा सीवियर पेन होगा। और वहां पे ब्लिस्टर्स आ जाएंगे। ब्लिस्टर का मतलब हो गया फाले आ जाने, बड़े बड़े जो लिक्विड ब्लिस्टर्स, आपने बर्निंग वाले टॉपिक में भी अभी समझा था कि ब्लिस्टर्स आ जाते हैं, तो सेम चीज हमारे फ्रैक्चर जब होता है तब भी आने का चांसेस रहता है, ब्लिस्टर्स। तो ये था सिम्टम्स। अब किसी को इंजरी हो गई है, किसी के हाथ टूट गया है, या फिर आप ही में से किसी के अगर फ्रैक्चर हो गया है, आपके आस पड़ोस किसी के भी नेबर में फ्रैक्चर हो गया, तो आपको क्या करना है, PRICE, ये 5 लेटर्स को ध्यान से याद कर लें। PRICE, प्राइस। P फॉर प्रोटेक्ट द इंजुरी। ये जो है वो आपको मैं डेमो में दिखाऊंगा, अभी थोड़ी देर में एक वीडियो प्ले करेंगे, उसमें हम दिखाएंगे कि उसको कैसे प्रोटेक्ट किया जाए। फिर आ गया R फॉर रेस्ट द इंजुरी। रेस्ट मतलब उनको सिंपली लेटा देना है, उनको रेस्ट करने देना, उनको इधर उधर मूवमेंट करने नहीं देना, उसको जस्ट लेटा दे, उनको शांत करें कि सर कीप काम, ध्यान रखें, शांत रहें, एम्बुलेंस को फोन कर दिया गया है और मैं आपको अभी ट्रीटमेंट देने जा रहा हूँ। आप ट्रीटमेंट क्या दोगे, जैसे इंटरनल ब्लीडिंग में मैंने आपको बताया कि आइस पैक लगाना, सेम वही चीज फ्रैक्चर में भी लगाना है। आइस इज द बेस्ट मतलब रेमेडी टू पेन, मतलब कि अगर किसी को भी दर्द है तो हम आइस लगा दें वहां पे, वो पेन उड़ जाएगा, एक बार का उड़ जाएगा, एक बार का दर्द आपको बहुत कम होगा, तो हमारे को आइस पैक ही लगाना है। फिर कंफर्टेबल सपोर्ट। कंफर्टेबल सपोर्ट का मतलब हो गया कि जहां पे भी उनको लेटाएंगे वहां पे आरामदायक रहे। अगर किसी के हाथ में अगर इंजरी आई है तो हाथ में प्रॉपर सपोर्ट रहे, एंड देन अगर पैर में इंजरी आई है तो नीचे अगर लेटा रहे उसको, तो एक सॉफ्ट कपड़ा या फिर कुछ स्पंज हो गया या कोई सॉफ्ट कपड़ा हो गया, वो उसके ऊपर ही उन्हें लेटाए ताकि उनको दर्द ना हो। एंड देन एलिवेट टू रिड्यूस स्वेलिंग। एलिवेट का मतलब उसको इंक्लाइन करना, जैसे कि हार्ट लेवल के ऊपर हमारे को लेके जाना है और उनको रेस्ट देना वहां पे, उस पे वेट नहीं आने देना। अगर वजन आएगा तो उनको पेन होगा, वजन बिल्कुल भी नहीं आने देना है। अभी आपको एक वीडियो प्ले मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज एक वीडियो प्ले किया जाए अभी फ्रैक्चर के ऊपर। अगर किसी को फ्रैक्चर हो जाए तो हमारे को क्या करना है। तो ये हमारे अभी कैडेट्स आ रहे हैं यहाँ पे, ये हमारे TTF के कैडेट्स हैं, वो आपको अभी एक डेमो देंगे कि अगर किसी को इंजरी हो जाए, फ्रैक्चर हो जाए, तो उनको हम कैसे क्या ट्रीटमेंट देंगे। अभी हमारा ये जो कैडेट है, ये अभी एक फ्रैक्चर होने का अभी डेमो देंगे आपको। ये देखो इनकी हाथ में भी फ्रैक्चर आ गया, अब हाथ टूट गया, हाथ में फ्रैक्चर है, तो हमें क्या करना है कि सर कीप काम, मैं आप थोड़ी देर रेस्ट करो, आप थोड़ी देर शांत रहो, मैं आपको ट्रीटमेंट दे रहा हूँ, जस्ट कीप काम, मैं आ रहा हूँ 2 मिनट में। आप 2 मिनट में आ रहे हो, अब क्या क्या लेने जा रहे हो, आपको 2-3 सामान लेना है। क्या लेना है, कुछ 3-4 टुकड़े कपड़े के लेने हैं बड़े बड़े, 2 हैंकी ले लो चाहे आप, और एक टॉवेल ले लो या फिर एक बेडशीट ले लो। नेक्स्ट हो गया, और 2 आपको क्या करना है, फ्लैट बोर्ड लेना, कार्ड स्लेट हो गया, ये वुडन स्टिक स्केल हो गया, कोई भी स्ट्रेट ऑब्जेक्ट लेनी है, हार्ड स्ट्रेट ऑब्जेक्ट।
जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हो कि जो हार्ड ऑब्जेक्ट लिया था हमने, स्ट्रेट ऑब्जेक्ट, उसको हमने ऊपर नीचे दोनों तरफ ऐसे करके लगा दिया। अब लगाने के बाद में 2 हैंकी लेने के लिए बोला था मैंने, तो उससे हमने क्या किया, फर्स्ट एंड पे एक नॉट लगा दी, फर्स्ट एंड पे मतलब उसको गांठ लगा दी प्रॉपर, एंड जो एक और जो एंड वाली पार्ट है उसके अनदर एंड जो है वहां पे एक और नॉट लगा देंगे अभी। अब ये देखो प्रॉपर तरीके से पैक हो जाएगा। ये देखो हैंकी से इन लोग ने क्या किया, ये पैक कर दिया अभी। अब ये पैक करने के बाद में अब देखो ये प्रॉपर्ली टाइटली नॉट लगा दिया हमने, ताकि ये मूवमेंट ना रहे। हमने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि वहां पे मूवमेंट होगा तो पेन होगा, थोड़ा सा भी मूवमेंट हुआ उधर पेन होगा। तो अब ये इधर पैक कर दिया इजीली। अब ये नो डाउट हाथ तो हिल रहा है, लेकिन वो फ्रैक्चर वाला पार्ट मूव नहीं हो रहा है। अब हमारे को क्या करना है कि रेस्ट देना है। याद आया प्रोटेक्ट दी इंजरी, अभी हमने प्रोटेक्ट कर लिया, अब हमारे को रेस्ट देना है। रेस्ट कंफर्टेबल सपोर्ट देना है। सपोर्ट कैसे देंगे, हमारे को एक टॉवल लेना है, टॉवल को इस तरह से फोल्ड करके उसके एक एंड पे एक नॉट लगा देंगे अभी हम। अभी आप वीडियो में देख लो, देखो आप, जो हमारे जो कैडेट है वो राइट वाले पार्ट में, राइट हैंड में जो एंड पकड़ा था वहां पे एक बड़ा सारा गांठ लगा देगा। इस गांठ का क्या यूज है अभी आपको वीडियो में पता चल जाएगा कि ये गांठ हमने क्यों लगाया। ये गांठ हमने एक नॉट लगा दिया टाइटली। अब इस गांठ को हम क्या करेंगे कि जो एल्बो वाला पार्ट है जहाँ पे वो एंड हुआ था वहां पे हम इस नॉट को अटका देंगे। अब देखो इस तरीके से हमने ये नॉट जो है वो अटका दिया। अब ये नॉट इसलिए अटकाया गया है ताकि देखो ये कपड़ा जो है मूवमेंट ना करे, स्लिप ना हो जाए। स्लिप होएगा तो वो उसको दर्द होगा। अब ये स्लिप नहीं होएगा यहाँ पे नॉट लगने के बाद में। अब हमने क्या किया, इसके गले पे ऐसे टाइटली बांध दिया। अब इसको ये कंफर्टेबल सपोर्ट हो गया। अब ये अभी हाथ पे कोई वजन नहीं है, इसके सारा वजन इसके गले पे चला गया अभी, तो ये कंफर्टेबल सपोर्ट हो गया यहाँ पे। तो अब क्या करेंगे, अब ये मूव कर पा रहा है, बट अगर अब एम्बुलेंस आने में टाइम लग रहा है, इसको हमें बाइक से या स्कूटर से लेके जाना है, और बाइक स्कूटर में रास्ता है तो खराब रहते हैं, गड्ढे आती है, तो वो जर्किंग होगा तो उसको पेन होगा। तो हम फिर से क्या करेंगे, एक और कपड़ा लेंगे, एक और टॉवेल लेंगे, उसको हम लोग प्रॉपर रैप कर देंगे। रैप कैसे करेंगे, अब देखो अभी वीडियो में, फ्रॉम बैक टू फ्रंट पूरा इसको एक गोल करके इसको टाइटली रैप करके उसको नॉट लगा देंगे ताकि वो मूवमेंट ना हो। अब ये हमने टाइटली रैप कर दिया इसको। अब ये बिल्कुल भी मूवमेंट नहीं होगा और आराम से हम गाड़ी में, बाइक में, स्कूटर में, कहीं कैसे भी करके इसको हम लोग इजीली हॉस्पिटल तक ले जा सकते हैं। आपकी अब अभी कुछ महीनों में स्कूल खुल जाएंगे आपकी, तो आप ऑब्वियसली आप खेल कूद करना ही है। हम बच्चे हैं, हमें तो खेलना ही है, प्लेग्राउंड जाना ही है। खेलेंगे तो कितनी बार स्कूल में भी ऐसा एक्सीडेंट हो सकता है। तो आप ये ट्रीटमेंट, ये फर्स्ट एड किसी भी स्टूडेंट, किसी भी आपके फ्रेंड को किसी के भी इंजरी आ जाए तो आप ये दे सकते हैं। जब तक एम्बुलेंस आएगी तब तक के लिए तो उसको रिलीफ हो जाएगा। तो ये हमारा एक डेमो था फ्रैक्चर के ऊपर। ये जो प्रोसीजर था इसको हम बोलेंगे स्प्लिटिंग। ये जो हमने प्रॉपर रैप किया, फ्रैक्चर का प्लास्टर बनाया, उसको हम लोग बोलेंगे स्प्लिटिंग। अब नेक्स्ट हम इमेज में देख सकते हैं कि अगर किसी के पैर में अगर इंजरी आ गया तो सेम वही करना है। नेक में आ गया तो नेक का प्रोसीजर आप रहने दो, आप ना ही करो तो बेटर है। अभी हम जाएंगे स्ट्रेचर के ऊपर। अभी किसी को इंजरी आ गई तो हम उसको कैरिंग एंड लिफ्टिंग। अब किसी को हाथ पे है तो नो डाउट पैदल चल के जा सकता है। अब किसी को पैर में इंजरी आ गई तो उसको हम लोग कैसे उठाएंगे। अब अभी कैरिंग एंड लिफ्टिंग का हम प्रोसीजर जानेंगे भी कैसे होता है वो सारा कुछ। तो फर्स्ट प्रोसीजर देखो आप चेयर में, आप इमेज में आप देख सकते हो कि 2 हैंड लिफ्टिंग, 3 हैंड लिफ्टिंग। मैं रिक्वेस्ट करूंगा कंप्यूटर जी से, हमारे जो पार्टनर है, कि एक वीडियो प्ले किया जाए जिसमें हम 2 हैंड लिफ्टिंग, 3 हैंड लिफ्टिंग एंड 4 हैंड लिफ्टिंग अपने स्टूडेंट को सिखा सकें। अभी ये वीडियो प्ले होने वाला है, तो इसमें हम आएंगे कि किसी भी पर्सन को अगर फ्रैक्चर हो जाए, कोई जरूरी नहीं है कि फ्रैक्चर के लिए, कोई भी सिचुएशन आ जाए, जैसे अर्थक्वेक आ गया, बिल्डिंग गिर गई, अब हमारे को रेस्क्यू करना है, तो हम क्या करेंगे, कैसे करेंगे। कहीं पे भी आग लग गई तो रेस्क्यू कैसे करेंगे। नॉट ओनली आप, ये हमारे टेक्निक्स जितने भी हैं, कि हमारे आर्मी हो गए, जो एनडीआरएफ हमारे जो टीम हो गए, सेफ रेस्क्यू टीम हो गई, वो लोग भी ऐसे भी यूज करते हैं। अभी आएगा हम लोग 2 हैंड लिफ्टिंग।
टू हैंड लिफ्टिंग हो गया, हमारा जो राइट जो हम लोग मेन हैंड है उसको हम लोग एक दूसरा से कोई भी टू पार्टनर से इसको कनेक्ट कर लेंगे, मतलब टाइटली उसको पकड़ लेंगे हम लोग एक दूसरे से। अब देखो ये पकड़ लिए इन लोगों ने। अब ये वेरी फास्ट रेस्क्यू होगा, कोई भी पर्सन होश में है, सेंस में है, उसको हम लोग आराम से यहाँ पे अब 2 हाथों से लिफ्ट करेंगे एंड देन उसका सपोर्ट के लिए हम लोग कंधे पे उसके आ जाएंगे। तो ये हो गया हमारा टू हैंड लिफ्टिंग का। इस तरीके से हम लोग टू हैंड लिफ्टिंग करेंगे। अभी हम लोग आएंगे थ्री हैंड लिफ्टिंग, मतलब 3 हाथों से हम लोग कैसे किसी को लिफ्ट करेंगे। एंड जो 4 हैंड जो है उसका क्या यूज है वो भी आपको बताऊंगा अभी मैं। जैसे कि टू हैंड लिफ्टिंग का क्या करेंगे, एक लड़का एक चीज का ध्यान रखें कि जब भी हम लोग ये लिफ्टिंग वाला काम करें तो प्लीज अपने हाथ में कोई भी बैंगल, कोई रिस्ट वॉच, कोई भी कड़ा कुछ भी नहीं पहने। अगर पहनोगे तो वो ग्रिप में प्रॉब्लम आएगी आप लोगों को, तो हमारे को ये काम नहीं करना बिल्कुल भी। तो अभी हम लोग थ्री हैंड लिफ्टिंग में जाएंगे। तो ये आप जो फर्स्ट कैडेट है अपना राइट टू लेफ्ट में पकड़ लिया एंड देन आप देखो ये एक ट्रायंगल फॉर्म बन गया। अभी एक देखो ये एक ट्रायंगल फॉर्म बन जाएगा। तो ये ट्रायंगल फॉर्म इस तरीका से बनेगा, राइट टू लेफ्ट, फिर से लेफ्ट टू राइट, एक 2 पर्सन के। और जो फोर्थ हैंड है वो बैक सपोर्ट के लिए, जैसे हम चेयर में बैठते हैं तो बैक सपोर्ट आता है ना, तो ये चेयर ही बन गया आपके लिए। अभी ये जो पर्सन है, ये जो हैवी वेट पर्सन है, कोई भी, नॉट ओनली हैवी वेट, कोई भी पर्सन इस पे अभी बैठ सकते हैं इजीली। और ये जो प्रोसीजर है हम लोग बेसिकली ओल्ड एज पर्सन, अनकॉन्शियस पर्सन या प्रेग्नेंट लेडी के लिए ही यूज करते हैं बेसिकली ये वाला प्रोसीजर। ये देखो इजीली इनको लिफ्ट किया हमने एंड देन ये मूव करके ये जो फोर हैंड है, जो फोर्थ हैंड जो स्पेयर रह गया था वो बैक सपोर्ट आ गया, ताकि वो अपना जो बैक है, जो अनकॉन्शियस पर्सन है, उसका बैलेंस हम बनाए रख सके। और जो प्रेग्नेंट लेडी है या फिर कोई ओल्ड एज पर्सन है जिनको कंफर्टेबल की ज्यादा जरूरत होती है, वो उनको बैक पे ऐसे हाथ दे के सपोर्ट दे दें ताकि वो कंफर्टेबली सेफ जोन पे जा सके। तो ये था हमारा थ्री हैंड लिफ्टिंग। अभी हम आएंगे फोर हैंड लिफ्टिंग में। फोर हैंड लिफ्टिंग बेसिकली ये जो हैवी वेट पर्सन होते हैं बहुत ज्यादा, जिनका 80 किलो 90 किलो 100 किलो तक वेट जिनका होता है, उनको लिफ्ट करने के लिए हम लोग फोर हैंड प्रोसीजर यूज करेंगे। दोनों ही कैडेट अपना राइट टू लेफ्ट हैंड, मतलब जो मेन हैंड है राइट हैंड, उससे अपने लेफ्ट हैंड के रिस्ट पे टाइटली इसको पकड़ लेंगे। पकड़ने के बाद में जो लेफ्ट हैंड वाला जो हाथ रह गया वो एक दूसरा का रिस्ट को पकड़ेंगे। तो ये फोर हैंड का मतलब फोर हैंड लिफ्टिंग हो जाएगा। ये फोर हैंड सपोर्ट आ गया इधर। तो फोर हैंड सपोर्ट आने के बाद में ये आपको बताया था मैंने कि हैवी वेट पर्सन जो भी है उनके लिए ही बेसिकली यूज आता है ये वाला चीज। तो ये हमने फोर हैंड एक दूसरा का, देखो आप कितना अच्छा लग रहा है, कितना इजीली, कितना मतलब अच्छी तरीके से एक दूसरे चारों मतलब फोर हैंड की ग्रिप आ गई है। अब ये हम क्या करेंगे, जो पर्सन जो विक्टिम है उसको हम लोग यहाँ पे बैठा देंगे एंड देन देखो आप उसको लिफ्ट करके कितनी इजीली ये लोग मूव करेंगे। उनको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा कि ये हैवी वेट पर्सन को उठाया नहीं उठाया। और मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप सभी से कि प्लीज ये जो प्रोसीजर है लिफ्टिंग वाला, प्लीज आप अपने घर पे ट्राई करें। लेकिन घर पे आप ट्राई करोगे तो कोई सेफ जोन पे ही करना है, मतलब ऐसे नहीं कि फ्लोर के ऊपर ही हमने लिफ्ट कर दिया, नहीं करना है। बेड के ऊपर, जहाँ पे अगर आपसे कुछ गलती भी हो जाए, कुछ मिस्टेक्स भी हो जाए, वो जो पर्सन जिसको आप लिफ्ट कर रहे हो अगर गिर जाए तो वो बेड पे ही गिरे और उसको इंजुरी ना आए। अगर वो फ्लोर पे करोगे तो उसको इंजुरी आने के बहुत ज्यादा चांसेस रहेंगे। तो प्लीज आप फ्लोर पे ना करें, उनको आप बेड के ऊपर या कोई गद्दे के ऊपर, कोई कुशन के ऊपर ही आप करें। तो ये था 2, 3, 4 हैम लिफ्टिंग। अभी हो गया, देखो आप इमेज में देख सकते हो कि चेयर से हमने कैसे लिफ्ट किया है। किसी भी पर्सन का अगर आपके पास में चेयर इजीली अवेलेबल है तो उसको चेयर में बैठा के आप उसको लिफ्ट करके आप ले जा सकते हो। नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट स्लाइड। अभी ये कुछ इमेजेस है आपको, जैसे कि हमारे टीटीएफ कैडेट एक दूसरे को कैसे करके उठा रहे इजीली करके। तो ये सब हमारी कुछ इमेजेस है, कुछ हमने जो काम किए हैं उन सबको, ये फोर हैंड का इमेज आ गया। अब वन मैन कैरी भी कैसे कर सकते हैं। जो भी लाइट वेट पर्सन होता है, जो फायरमैन, इजीली ऐसे लिफ्ट करके उनको दोनों हाथों से ले जा सकते हैं। एक नेक्स्ट गया द ह्यूमन क्लच। तो ह्यूमन क्लच मतलब कंधा पे उसको, जो सेंस में है ये पर्सन, उनको हम लोग इसे रगड़ के ले जा सकते हैं। अभी नेक्स्ट इमेज आएगा आपके सामने कि फायर फाइटर कैरियर। अगर किसी बिल्डिंग में आग लग जाए
तो आपको कैसे उठाना है। वो नॉट ओनली आग लगे, कोई भी पर्सन अनकॉन्शियस है और आपके साथ में कोई है नहीं हेल्पिंग हैंड, तो आप कैसे उसको लिफ्ट करोगे। तो फर्स्ट इमेज में देखो कि एक बच्चों की तरह हमें उस विक्टिम को उठाना है। उसको हमें आर्म होल के नीचे इधर पकड़ के, बच्चों के जैसे हम उठाते हैं उसके चेस्ट पे पकड़ के, उसी तरीके से उठा के उनको इमेज देखो, उनको अपने चेस्ट तक लेके आ गया। अब लेके आने के बाद में क्या करना है, हमारे शोल्डर में, जो इमेज सी में देख रहे हो आप, हमारे शोल्डर में उनको लेटा देना, या मतलब लिफ्ट करना वहां से। एंड देन डी टू ई, लिफ्ट करके ई में आप देखो, ई में उनको हाथ को पकड़ लिया ताकि वो मूवमेंट ना करे और वो कंफर्टेबली आप उसको सेफ जोन पे लेके जा सको। अब हम क्या करेंगे, इम्प्रोवाइज स्ट्रेचर। अब हम क्या बनाएंगे, स्ट्रेचर बनाएंगे। ये तो हमने लिफ्टिंग का बता दिया, अब स्ट्रेचर आपको बनाने सिखाऊंगा कि हम स्ट्रेचर कैसे बना सकते हैं। तो इसके लिए एक वीडियो प्ले किया जाए प्लीज। आप घर बैठे बैठे वेरी इजीली स्ट्रेचर बना सकते हैं, प्लीज आप ट्राई करें इसको। अब कैसे स्ट्रेचर बनाएंगे, उसके लिए आपको 2 पोल चाहिए। 2 पोल क्या होगा, कोई भी एक वुडन, कोई भी हैवी मतलब हार्ड, जिसमें वेट लिफ्ट करने की शक्ति रहे, मतलब जो प्रॉपर गुड वुडन स्टिक ले लो, या तो 2 आयरन रॉड ले लो, उसमें हम लिफ्ट कर सकते हैं। ध्यान रखिए सावधानी से करें, थोड़ा सा गड़बड़ करोगे तो आपको इंजरी आ सकती है। तो हमारे को गड़बड़ कुछ नहीं करना है, धीरे धीरे संभल के करना है। 2 वुडन स्टिक या फिर आयरन रॉड चाहिएगा। अब हम क्या करेंगे, 2 टी शर्ट चाहिए। 2 टी शर्ट हम क्या करेंगे, अपने कैडेट की ही उतार लेंगे। अगर आपके घर में अवेलेबल तो हो ही जाती है इजीली, टी शर्ट हर कोई पहनता है, तो आप टी शर्ट अपने घर से भी यूज कर सकते हैं। और एक बात का ध्यान रखें कि आप जब भी टी शर्ट को उसको डालो तो लोअर होल, जो कमर वाली जो पार्ट है, वहां से डाल के आर्म होल से ही निकालना है, नेक होल से नहीं निकालना है। मतलब फ्रॉम सिंगल होल डालेंगे एंड 2 होल जो है हमारे जो आर्म वाले होल है, वहां से उसको निकालेंगे। अब ये एक टी शर्ट तो हो गया। अब हमारा पोल जो है वो बड़ा है, जैसे कोई 5 फुट पर्सन को हमें लिफ्ट करना है, तो उसके लिए बड़ा एरिया चाहिएगा उसको लेटाने के लिए। तो उसके लिए हमारे को एक और टी शर्ट चाहिएगा। अगर वो भी छोटी पड़ती है तो आप एक और टी शर्ट डाल सकते हो। वो डाल के आप देखो, लोअर होल से डाला है, आर्म होल से ही निकालना हमारे को। वो डालने के बाद में आप दोनों टी शर्ट को हम लोग ज्वाइंट कर देंगे। ज्वाइंट करने के बाद में आप देखो, ये सिंपल, वेरी इजी स्ट्रेचर बन गया। ये स्ट्रेचर आप बना सकते हो घर पे। एंड मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप सबसे कि प्लीज इसको ट्राई करें एंड किसी को लेटा के उसको लिफ्ट भी करें। एंड लिफ्ट करोगे तो प्लीज फ्लोर पे नहीं करें, उसको एक बेड के ऊपर, कोई कुशन के ऊपर ही ट्राई करें उसको, ताकि कुछ गड़ती हो, कुछ गड़बड़ी हो तो वो फ्लोर पे ना गिरे, बेड पे ही गिरे। अब ये हो गया हमारे टी शर्ट से स्ट्रेचर हमने बना लिया। अब हम क्या बनाएंगे, एक और स्ट्रेचर बनाएंगे, वो भी हम बेडशीट से या ब्लैंकेट से। उसके लिए हम क्या करेंगे, एक ब्लैंकेट लेना है एंड 2 पोल लेना है। ब्लैंकेट ले लो चाहे बेडशीट ले लो, तो उसको ओपन करना है एंड 2 पोल लेंगे। 2 पोल लेंगे कि 1/3 में एक पोल को रख देंगे हम, उसको इमेज 2 में आप देख सकते हो, उसको हमने फोल्ड कर दिया। फोल्ड करने के बाद में क्या करेंगे, एक और पोल लेना है, जो फोल्डेड एरिया उसको ऊपर रखना है। नीचे रखोगे तो वो उसका ग्रिप नहीं बनेगा, तो आपको ऊपर ही रख के फिर से जो बच गया, जो 1/3 हिस्सा जो बचा हुआ है, उसको फिर से फोल्ड कर देंगे। आप इमेज 3 में देख सकते हो कि एक और ये चलता फिरता स्ट्रेचर बन गया। तो इस तरीका से हम घर बैठे बैठे ही टी शर्ट से स्ट्रेचर बना सकते हैं, बेडशीट से बना सकते हैं, ब्लैंकेट से बना सकते हैं। अब नेक्स्ट इमेज में आपको देख सकते हो कि एक हमने ये टी शर्ट से स्ट्रेचर बनाया, कैडेट को उसको लेटा के हम आराम से उसको लिफ्ट करके लेके जा सकते हैं। अब नेक्स्ट इमेज में दिखाएंगे आपको एस हैंड मेथड इम्प्रोवाइज स्ट्रेचर। मतलब अगर आपके पास में ना ही टी शर्ट है, ना ही वुडन स्टिक है, ना ही बेडशीट है, ब्लैंकेट है, कुछ भी नहीं है, फिर भी आप कैसे स्ट्रेचर बनाओगे। हम कैसे बनाएंगे, उसको एस फॉर्म में बनाएंगे। उसके लिए हमारे को 2 कैडेट चाहिएगा। आप इमेज में देख सकते हो कि फर्स्ट कैडेट ने, जो विक्टिम है, उसके गले के नीचे, मतलब इस जगह पे गले पे उसको लिफ्ट कर लिया। करने के बाद में जो नेक्स्ट हैंड है, जो राइट हैंड है, वो हम उसके कमर से उसको लिफ्ट कर रहे हैं। एंड देन सेकंड जो पर्सन है, उसने भी अपना राइट हैंड को कमर के ऊपर, मतलब आई मीन कमर के नीचे इसने सपोर्ट दे दिया। एंड देन जो फोर्थ हैंड, जो लेफ्ट हैंड जो रह गया, वो हमारे पैर पे उसको सपोर्ट दे दिया। अब ये एस फॉर्म देखो, ये एस फॉर्म बन गया, ये एस फॉर्म स्ट्रेचर हो गया। तो ये था हमारा स्ट्रेचर वाला पार्ट, यहाँ पे खत्म होता है। यहाँ पे मेरे 3 टॉपिक्स भी खत्म होते हैं।
और हमारा सेशन भी यहाँ पे बस खत्म होने को है। तो मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज इसको एक बार घर पे ट्राई करें। स्ट्रेचर वाला, फ्रैक्चर वाला, ये दोनों ही पार्ट वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी यूजफुल। कहीं पे भी कभी भी आपको जरूरत पड़ सकती है। आप अगर आप बनाना सीख जाओगे तो आपको मतलब डर नहीं रहेगा, कॉन्फिडेंस रहेगा कि हाँ मैं बहुत इजीली इसको बना सक रहा हूँ या बना सक रही हूँ। तो यहाँ पे हमारा सेशन एंड हुआ है। तो मैं चाहूंगा किसी भी एक पर्सन से रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज अपने आप को सेशन यहाँ पे ही एंड कर दें। कोई भी पर्सन आ जाए प्लीज, 1-to-1 कन्वर्सेशन कर सके जिससे। मैं देख सक रहा हूँ प्रज्ञा जैन, प्लीज आप अपने आप को अनम्यूट करें। प्रज्ञा जैन जी। Yes, हेलो। sir. Yes, sir. प्रज्ञा जैन जी, सो आपका आज का सेशन कैसा लगा? ये 5 टॉपिक्स हमारे। Sir, very interesting and knowledge बहुत ज़्यादा बड़ी है इससे। सो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि नॉट ओनली आप ही, आपके आस पड़ोस, आपके घर के मेंबर के ये सब सिखाएं। फ्रैक्चर वाला पार्ट, स्ट्रेचर वाला पार्ट, एंड स्नैक बाइट में क्या करना है, ब्लीडिंग में क्या करना है, चोकिंग में क्या करना है। तो ये सारा कुछ प्लीज आप सिखाएं। आप खुद ने सीख चुका है, आपने, आप अभी एक कैडेट बन चुके हो, तो आपको ये सारा कुछ सीखना है एंड आस पड़ोस को भी सिखाना है उनको, और ये नॉलेज को स्प्रेड करना है। तो Sure, प्लीज ये sir. सब जो टेक्निक्स मैंने बताए हैं आपको, तो इसको आप घर पे एक बार प्रैक्टिस कर लें। Okay, sir. ठीक है। Sir, I Thank you. wanted to ask, what are the reasons for internal bleeding? सॉरी एक सेकंड, जस्ट अ सेकंड। हाँ, क्या बोल रहे हो आप? Sir, what are the reasons for internal bleeding? इंटरनल ब्लीडिंग क्या? सॉरी, आपकी आवाज कट गई फिर से। व्हाट आर द, हेलो हेलो। इंटरनल ब्लीडिंग के कई रीजंस हो सकते हैं। एक तो जैसे अगर अपने को कहीं एक्सीडेंट में चोट लग जाए तो बाहर से ब्लीडिंग नहीं होकर के कोई और अंदर का ऑर्गन डैमेज हो सकता है, उसके कारण इंटरनल ब्लीडिंग हो सकता है। फिर कई बार क्या होता है कि कुछ मेडिकल कंडीशंस के कारण कुछ ऑर्गन्स में से इंटरनल ब्लीडिंग हो सकती है। तो इसका स्कोप बहुत बड़ा है। इट इज अ वेरी बिग मेडिकल स्कोप फॉर इंटरनल ब्लीडिंग। देयर आर वेरियस डिजीजेस विच जो कि इसमें इसको बढ़ावा दे सकते हैं इंटरनल ब्लीडिंग को, और इट इज अ वेरी सीरियस कंडीशन। अगर ऐसा कुछ होता है तो वी शुड इमीडिएटली टेक द पर्सन टू द हॉस्पिटल फॉर द इमरजेंसी मेडिकल असिस्टेंस। Apart from using the ice packs and the first aid, after giving him emotional support, हमें जल्द से जल्द उसे हॉस्पिटल ले जाना चाहिए। Hope it is clear. हेलो, सो हमारा यहाँ पे सेशन एंड होने को है, तो मैं आदर्श जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज कंटिन्यू करें। थैंक यू श्रेयांश जी, थैंक यू नवीन जी। और तो साथियों, ये सेशन आपके लिए आज MFR की सार्थक और उत्कृष्ट जानकारी के लिए प्राप्त हुआ था। हमें आशा है कि ये सेशन आपको बेहद उपयोगी साबित हुआ होगा। तो मैं फीडबैक के लिए आमंत्रित करूंगा प्रिंसिपल मिसेस दीपिका जी शर्मा से। सर, दीपिका जी का नाम जो है डिस्प्ले नहीं कर रहा है, वो अगर कोई और नाम से हैं, वीडियो अगर ऑन कर दें या हैंड रेस कर दें।
मिसिस समिता रजा के लिए आप अनाउंस कीजिएगा, मिसिस समिता रजा। तो मैं Okay, रिक्वेस्ट टू मिसिस शमिता रजा। please unmute, ma'am. Please unmute yourself. Yeah. Please, video नहीं on. Hello. यस मैम। Audible actually. Hello. यस Am I? मैम। Yes, sir. Ma'am, you are So, audible. Continue. okay. I think the entire session is over now. Do we have? Hello. Yeah, it's over, ma'am. Yeah. So do we have any point for to take the questions from in the chat box from our audiences also, or we are going to conclude it? We can take the questions, ma'am. Yeah. Yes. So before going to the concluding remark, I would like to ask if students are having any kind of questions, any queries for this wonderful from this wonderful session, so they may ask. Anyone having any doubt, beta? If anybody is having any queries or doubts regarding the session, you can please come upon the chat box and ask your question over there. Please. Okay, I think the session was very wonderful, and it is well explained. That's why they're not having any kind of doubts in the sense that any queries regarding that. So, on the behalf of entire GCIS team, and on the behalf of our respected principal ma'am, due to her busy schedule, just now she is in meeting somewhere. So, on behalf of the entire GCIS family, I would like to say thanks to this team for providing this wonderful session. Quite informative and giving details for all these things at a grassroots level. I can say that for all kind of a medical emergency, you can say, even in case of the natural calamities, or maybe sometime all of sudden it could be happen with anybody. So thank you so much for taking this session and coming out with this requirement, and coming out with this kind of the problems, thinking that yeah, these could be a session, these could be a kind of information which should be shared with our students. So thinking on that point itself is a point of appreciation to all of you, कि आपने ये सोचा कि इस तरह की डिजास्टर की टीम हमारे साथ वर्क करे, और इन सब मैनेजमेंट पे वी शुड हैव अ काइंड ऑफ अ डिस्कशन. Wonderful session. Thank you so much for sparing your time, for providing your valuable suggestions and advices. So, on the behalf of entire GCIS fraternity, once again, thanks to everyone. And I would look forward for your session in the future also. Thank you, sir. थैंक यू मैम Thank you. फॉर अ वंडरफुल फीडबैक। तो अब मैं धन्यवाद ज्ञापन के लिए आमंत्रित करूंगा मंत्री पेरापंथ युवक परिषद के मंत्री श्री विवेक जी बैद को। सर आप अपने को अनम्यूट कीजिए विवेक जी।
सर विवेक जी कोई कारणवश नहीं जुड़ पा रहे हैं। तो मैं निवेदन करूंगा विवेक जी की जगह जतन जी श्याम सुखा से कि धन्यवाद ज्ञापन के लिए। हेलो, हाँ जतन आवाज आ रही है सर? हाँ सर। हेलो, आराध्य की श्री चरणों में वंदन। हेलो, प्रिंसिपल मैम, केटीएस के राष्ट्रीय प्रभारी श्री विकास जी बोथरा, श्री जितेश जी पोखरना, 13पंथी युवक परिषद के फरीदाबाद के अध्यक्ष राजेश जी, विवेक जी मंत्री और सभी बच्चों, सागर जय जिनेंद्र। ये बहुत ही उपयोगी सेशन था। आप सभी ने इसमें बड़ी जागरूकता के साथ में भाग लिया। सभी का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। ओम आराम। थैंक यू जतन जी। तो साथियों, ये सेशन आपको आज मिशन एम्पावरमेंट के तहत MFR की उत्कृष्ट जानकारी के लिए प्राप्त हुआ था। हमें उम्मीद है कि आपको सेशन काफी इंफॉर्मेटिव आपके लिए रहा होगा और आप स्वयं की या दूसरों की जब भी जरूरत पड़े तब मदद करने में सक्षम हो पाए होंगे। तो इसी के साथ सेशन का पूर्णाहुति करते हैं। थैंक यू जुड़ने के लिए और इस सेशन को बेहद ध्यान से सुनने के लिए। थैंक यू। हैव अ गुड डे। जय हिंद।